Kiran, Shall we start? Yes, ma'am. Yes. Okay. So, good morning, one and all, to the third and final session of day 2, Finex 2020. In the morning, we had speakers from prestigious organizations like Landing Cart and IDFC Bank. The experts shared their myriad experiences working with the companies, from importance of hard work and confidence, growth in NBFCs and banks, multiple opportunities in the financial services sector, importance of learning more and expecting less, dedication to job, having a network, being good and confident in communication, and why making mistakes is actually good. It could be a learning opportunity. So now in our final session, we have with us uh, Mr. Mukesh Prajapati from Mansukh Securities. So since morning we are talking about the banking sector, which is one of the important sectors in finance. Now we will be hearing from Mr. Prajapati about another important sector is in finance, that is the capital markets. So may I invite my colleague, Dr. Sweetie Shah, to introduce our esteemed guest. Over to you, Sweetie ma'am. thank you, Kiran ma'am. Again, a warm welcome morning to you all. Our last guest of the series Finex 2020 is from one of our recent recruiter, Mansukh Securities and Finance Limited. So we have with us Mr. Mukesh Prajapati from batch 2011 Alger MBA. Mr. Mukesh Prajapati, an analyst on derivatives, he has over 9 years of experience in stock market. He is not only derivative analyst but also responsible for generating revenue for companies' fund through various complex derivative strategies. Apart from trading, he is also managing team size of almost 100 employees in the organizations. It's our pleasure to have Mr. Mukesh with us to interact with our finance specialization students. Welcome, Mr. Mukesh. Over to you. Thank you. Okay. Thanks, ma'am. Thanks to everyone. Hello. Good morning, everyone. Am I audible? Yes, good morning. Yes, you are okay. Good morning. Okay. Good morning. As a ma'am introduced myself, myself Mukesh Prajapati. I also did MBA from LJ in 2011. Okay. Yes. I joined Mansukh Security and Finance in 2011 after completing my third sem. Okay. So I joined Mansukh after like my summer internship, and hello, am I audible? I'm little bit confused. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay, thank you. Sir, Okay. you are audible, but if you can straighten your camera because it is Okay. Okay. yeah. Okay. That's great. That's great. Thank you. Okay. Okay. Thank you very much. Okay. Okay. Thank you, ma'am. Actually, मैंने अपना थर्ड सेम कंप्लीट करके ही मनसुख ज्वाइन कर लिया था, राइट? फोर्थ सेम मैंने एक्सटर्नल ऐसे एग्जाम ही दी थी. आई कुडंट ज्वाइन एनी सेशन, और I just go through all the reading material given from my friends and all that kind, right? I think अभी भी हमने थर्ड सेम में ज्वाइन किया है, थर्ड सेम में लोगों को रिक्रूट किया है. आई थिंक एलजे में से रिसेंटली अभी जस्ट हमने इंटरव्यू भी लिया था. लाइक आई हर्ड हार्दिक रुदानी, आई जस्ट नो द नेम, so I'm telling. Okay, so here I'm not from a Mansukh, but here I am like alumni from a LJ, right? Okay, so I don't want like कि मैं कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ यार, ऐसा कुछ है नहीं कि कंपनी के फेवर में बताना चाहता हूँ. आई जस्ट वांट टू से कि जो फैक्ट है वो फैक्ट है, राइट? सो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई मैं मनसुख की तरफ से आया तो मनसुख की अच्छी बात बोलूंगा. जो भी है, हमारी टीम में मतलब 100 टीम है, जैसे मैम ने अभी बताया, तो 100 टीम में मेरे हिसाब से मेरी 30-40% स्ट्रेंथ तो एलजे की है. सो एक्चुअली मैं भी एलजे से ही हूँ. सो मोस्टली एलजे से हमारा कुछ 9 साल से चल ही रहा है रिक्रूटमेंट, तो बेसिकली सिद्धार्थ बिस से हमारा कोऑर्डिनेट होता रहता है बेसिकली, तो चलता ही रहता है. जैसे अभी हमने एक संदीप प्रजापति करके भी एक रिक्रूट किया, जिसका नाम है मैं उसका बता रहा हूँ रिसेंटली. सो
इन कोविड वी आर ऑल्सो लाइक हम ये रिक्रूट करना भी चाहते हैं कि भाई करते हैं धीरे 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 लाइक प्रिकॉशियस लेके लेके करते हैं, राइट। सो बेसिकली मेरा ये इंट्रोडक्शन है, राइट, पर्सनली, राइट। अभी अब मैं जॉब में क्या कर रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ कि एज अ मैम सेड डेरिवेटिव एनालिस्ट एज अ पोस्ट है मनसुख में, ठीक है। तो ये सबके लिए एक ही पोस्ट है। बहुत लोगों के माइंड में होता है कि भाई इतने टॉप लेवल पे होते हैं फिर भी एक ही पोस्ट क्यों होती है। सो इसकी एक अच्छी चीज भी ये है कि हम सबको इक्वली रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहते कि भाई कोई जूनियर है सीनियर है, जिसके पास जितनी कैपेबिलिटी है वो हर कोई ग्रो हो सकता है, ठीक है। और डेरिवेटिव एनालिस्ट इटसेल्फ इज लाइक मैनेजर से थोड़ी एक अच्छी प्रोफाइल है। जैसे लाइक मैनेजर आप किसी को बता दो तो मैनेजर लाइक हर जगह मिलेगा, बट डेरिवेटिव एनालिस्ट इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफाइल। आप लोगों को पता होगा फिनेंस, बीइंग अ फिनेंस, व्हाट इज डेरिवेटिव्स? एनीवन हैव आइडिया? Yes, sir. ओके ओके। सो बेसिकली आपके फाइनेंस में थर्ड सेम में आता है आई थिंक डेरिवेटिव सेगमेंट्स। सो यू आर अवेयर अबाउट और जस्ट एक हार्दिक कोई पता, एचआर पंचाल कोई पता है जिसको हम थोड़ा No, नहीं sir. सर, Please share more information. मैम ये थर्ड सेम में आता है सेकंड सेम में आता है? आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज एक्चुअली। इन लोगों का Third थर्ड sem. सेम अभी चल रहा है। Third sem, yes. ओके वेरी नाइस। ओके सो मनसुख जब मैंने ज्वाइन किया था 2011 में, तब हमारे पास ओनली 4 मेंबर्स एंड 2 फ्रॉम एलजे, मी एंड पलक सनन से, राइट। 2 लोग हम लोग ज्वाइन हुए थे। दिल्ली में वी हैव अ लाइक बहुत बड़ी ब्रांच, मेन हेड ऑफिस दिल्ली में, तो दिल्ली में बहुत कुछ है। बट पर्टिकुलर अहमदाबाद की बात करें तो 2011 में हम 4 लोग ज्वाइन हुए थे। तब यहाँ कुछ नहीं था। इवन जब हम रिक्रूट हुए तब कंप्यूटर भी नहीं थे। यानी कि हम रिक्रूट होने के बाद 1 वीक के बाद इधर कंप्यूटर आए थे। राइट नाउ वी आर ऑलमोस्ट 250 एम्प्लॉयज इन पर्टिकुलर अहमदाबाद, इन विच आई एम मैनेजिंग 100 एम्प्लॉय। लाइक आई हैव 100 size of team, right? So अब समझ सकते हो कि मैं 1 से सीधा 100 हुआ, 9 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आया, ठीक है। प्लस हमने खुद की अपनी ट्रेडिंग भी की है और रेगुलरली यू कैन कंपाउंड दैट ग्रोथ कि ये कितना होता है कि 1 से 100 करना, अभी 100 से जो होगा वो आगे कंपाउंडिंग में होगा, ठीक है। तो जर्नी ऐसे ही चालू होती है मोस्टली कि भाई करना है कहाँ करना है। लोगों का बहुत कंफ्यूजन था कि मनसुख आइए बॉन्ड है ये है वो है, सबको बहुत सारी क्वेरी थी स्टॉक मार्केट में क्या करना है। लाइक स्टॉक मार्केट को आज की डेट में जब हम ज्वाइन हुए थे तब लोग स्टॉक मार्केट को एज अ नेगेटिव लेते थे कि स्टॉक मार्केट में क्यों ऐसा। लाइक इवन आई हैव हर्ड कि जब मेरे कलीग थे वो लोग बोलते थे कि अगर मैं स्टॉक मार्केट ज्वाइन कर लूंगा तो मेरी एंगेजमेंट भी नहीं होगी ऐसा। तो बहुत लोगों का ऐसा रिव्यू भी था कि स्टॉक मार्केट में ऐसा कैसे हो सकता है कि क्या है ऐसा। तो फिर भी हमारी तब मेरे सबसे 200 लोग एमबीए के थे, उसमें से 25 लोग एलजे में से इंटरव्यू में गए थे, वहां से हम 2 लोग सिलेक्ट हुए थे ऐसा। सो ऐसा नहीं कि जो सिलेक्ट नहीं हुए वो अच्छे नहीं थे बुरे थे, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोगों का अपना अपना प्रोफाइल होता है, वो सब लोग अपनी अपनी जगह पे सही है ऐसा। हेलो हेलो You are audible. Yes, clearly audible. एक्चुअली प्रॉब्लम इज दैट मैम कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। रीजन ये कि No, no, we are listening. सो दैट इज द इशू कि भाई कि खाली मैं अकेले बोले जा रहा हूँ या कुछ लोग सुन रहे हैं। सो दैट इज Everybody is listening. Don't worry, we are all ears. Yes, and ma'am. there will be questions also. So Okay. presently we are listening to your journey. Okay. मैम आपके भी This लेक्चर is मैंने a- अटेंड किया हुआ। Yes, sir. This is a classic problem of online lecture actually. Yes, same Yes, thing sir. happens to us. हाँ सर, हमें ऐसा लगता है कि मैं अकेले बोले ही जा रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि सर जो भी हो, लाइक मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं अगर कोई डिस्कशन कर रहा हूँ तो बीच में से कोई क्वेरी भी आनी चाहिए, तो थोड़ा मुझे लगे कि भाई चलो मैं वो इंटरेक्टिव हूँ। ऐसा ना हो जाए कि मैं लाइक आउट ऑफ हूँ, कि पता ही नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ और उस लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और लाइक हम दे रहे टाइम तो सबका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो जाए कि मैं आके बोल लूँ और फिर खत्म कर दूँ, मतलब नहीं है ना। सबके लिए वर्थ होना चाहिए ऐसा। तो कोई क्वेरी रेज कर सकता है, कोई टेक्स्ट कर सकता है कि आए हो क्वेरी, जो भी है, जो भी कोई पॉइंट बता रहा हो ऐसा, बिकॉज हमारे पास एक ही घंटा है, 1 आवर ही है, राइट।
और सर आप दोनों के लेक्चर मैंने अटेंड किए हुए हैं, सॉरी सर और मैम के दोनों के लेक्चर अटेंड किए हुए हैं। किरण मैम लॉ पढ़ाते थे और सर फिनांस पढ़ाते थे। आप लोग मुझे शायद नहीं पहचानते होंगे। I remember you. ओके, मुकेश थैंक याद है याद है। याद है, Yes, we sir. we we don't forget faces. नाम एक्चुअली शायद भूल जाते सर हैं। मेरी लिमिटेशन थी कि मैं एक्चुअली क्लास अटेंड नहीं करता था। मुझे यहाँ नहीं बोलना चाहिए, बट मुझे पता है कि एक्चुअली मैं नहीं कर पा रहा था। हमको डिफॉल्टर की लिस्ट याद होती यस सर, यस सर। Because we are used to giving so many reminders, so those names are really there in our mind. And Okay. then, you know, at the time of giving the continuous evaluation, we are wondering how to pass. So that's Actually- how also we remember. एक्चुअली मैं इतना इंटेलिजेंट भी नहीं था कि लोग मुझे याद भी रखे, बट यस दैट इज द यूनिक कि भाई आप अगर एजुकेशन में इंटेलिजेंट हो, दैट डजंट मीन कि आप कॉर्पोरेट में आप इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। सो ये एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव है। तो जितने भी लोग हैं जिनको लग रहा है कि भाई जो टॉपर है वही लोग अच्छे हैं, ऐसा नथिंग लाइक, मेरे हिसाब से तो जो प्रैक्टिकल है वही आगे जाएगा। लाइक वी नीड टू एक्सेप्ट प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है। थियोरेटिकल ठीक है अपने हिसाब से, जो भी बेस है राइट है, सब अपनी जगह सही है ऐसा, बट हमें कहीं ना कहीं एक कॉर्पोरेट में जा रहे तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, राइट। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, हम बहुत सारे इंटरव्यूज लेते हैं। ऐसा मैं फीडबैक देना चाहता हूँ कि क्या होता है, हम एलजी में से इंटरव्यूज लेते हैं, ऐसा है। तो एक एमबीए लेते तो एमबीए यानी क्या होता है कि होता है कि भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब आप एक इंटरव्यू देने आते हो तो एक उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनके लिए भी टाइम है और हमारे लिए भी टाइम है, दोनों ही चीज है। ऐसा कि ऐसा नहीं कि हम उसको बुला ले और उनका इंटरव्यू ना ले। हमारे साथ क्या होता है एक्चुअली सर कि हम इंटरव्यू लेते हैं, फिर चीजें आती है, फिर बोलते हैं कि सर मैंने तो बॉन्ड के बारे में पढ़ा ही नहीं था, लाइक ये। तो हम ये सोचते हैं कि अपने 2 लेवल की प्रोसेस कर दी है, अभी आप लास्ट में बोल रहे हैं कि आपका फैमिली में से हाँ या ना आ रहा है, तो आप समझो कि भाई एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कॉर्पोरेट में हर किसी का टाइम वैल्यूएबल होता है, ऐसा तो नहीं होता कि भाई कभी भी कोई भी अवेलेबल होता है। तो हमारे साथ ये बहुत बार हुआ है, नहीं पर्टिकुलर एलजे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। और ये चीज मुझे पता नहीं समझ में आती कि भाई आप जब इंटरव्यू देने जाते हो तो आप प्रोफाइल के बारे में पढ़ो, कंपनी के बारे में पढ़ो, ट्राई करो। आप अपने जो भी सीनियर है या जो भी प्रोफेसर फैकल्टीज है उनसे पूछो कि एलजी का सॉरी मनसुख का कैसा एक्सपीरियंस है, क्या है, अपने पास्ट में कैसे गए। तो विदाउट प्रिपरेशन ऐसे लाइक एक्सपीरियंस देने के लिए इंटरव्यू देने आ जाते हैं, फिर लेटर ऑन सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं है, मुझे ये सिलेक्ट नहीं है, मुझे अपनी फैमिली में बॉन्ड बना कर ये कर रहे हैं। तो इट गिव्स अ नेगेटिव इंप्रेशन। और इसमें एक प्रॉब्लम क्या होता है, जो अच्छे लोग हम सिलेक्ट करना चाहते हैं ना, फिर भी हमारा माइंड ये हो जाता है कि नहीं अभी नहीं करना, जाने दो। हर किसी का यही प्रॉब्लम आता है। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर एक बैच में होती है, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि एक ही बैच है या इस अभी फर्स्ट टाइम मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिला है तो मैं यही बोल रहा हूँ कि चाहे आप कोई भी कंपनी में जाओ, कि कोई भी लाइक लैंडिंग कार्ड में जाओ, आईडीएफसी बैंक में जाओ, आप पहले गो थ्रू जाओ कि भाई क्या प्रोफाइल है ऐसा। अब कोई अच्छी चीजें सुन के, अच्छे पैकेज सुन के आप लोग चले जाते हो, फिर लेटर ऑन रियलाइज होता है कि ये तो डायरेक्ट सेलिंग था। फिर लेटर ऑन रियलाइज होता है ओहो मैंने तो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी कि मुझे यहाँ नहीं यहाँ जाना चाहिए था। ऐसा बहुत बार होता है। सो एज एल्यूमनाई, एज अ फ्रेंड समझ लो, तो मुझे यही लगता है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों को श्योरिटी होनी चाहिए, कि आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। अभी आप एमबीए कर रहे हो, कॉर्पोरेट में जाओगे, आप किसी को बोलोगे तो ऐसे ही नहीं हो सकता कि भाई ठीक है चलो अभी कर लेते फिर देखा जाएगा आगे क्या होगा। लाइक ऐसा नहीं हो जाएगा। क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि भाई मुझे क्या करना है, नहीं करना है। और अभी तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज है, पहले तो नेट नहीं था, अभी तो समझो ना कि ऊपर से कोरोना के हिसाब से हमने ये भी एक एक्सपीरियंस किया है, लोगों को अच्छा नॉलेज मिल रहा है। रीजन क्या है, लोगों की अवेलेबिलिटी जल्दी हो गई है, आने जाने का टाइम बच गया। अगर यही चीज मुझे आना होता तो आई एम 99% मैं मना ही करता कि नहीं मैं एक्चुअली नहीं आ सकता था, बट सिंस ऑनलाइन था तो मैंने बोला ठीक है ओके चलो। बिकॉज सैटरडे हमारा भी चालू ही होता है मोस्टली, तो हर किसी के लिए वो डिफिकल्ट होता है। बट अभी तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। तो मेरे हिसाब से एक ये भी है कि लोग बोलते हैं कि कोरोना के टाइम में हमारा प्लेसमेंट हो रहा था तो हमें जॉब नहीं मिली। दिस इज लाइक, अब कोई चीज के बारे में नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही मिलेगा। मेरे हिसाब से आप ये देखना चाहिए कि आपके पास पॉजिटिव क्या है। अभी के सिनारियो में सबके लिए सेम सिनारियो, चैलेंजेस भी है, सब कुछ है, राइट। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी ये है कि हमें अच्छा टैलेंट मिलेगा। रीजन क्या है कि लोग रिक्रूट नहीं कर रहे, बट एज अ मनसुख वी आर रिक्रूटिंग, वी हैव स्टार्टेड अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। हमें 6 मंथ हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अभी भी बहुत लोगों को वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया हुआ है।
बट हमें लग रहा है कि अभी कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सिंस वी स्टार्टेड लाइक 1 अक्टूबर से हमें कुछ लोगों को कंपलसरी भी कर दिया जिनकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। जो भी फैक्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कंपनी के भाई खराब बात है ये। हाँ, अभी हम रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं तो हम वही कंडीशन के साथ करें कि उनको ऑफिस आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए, राइट। हम अपने हिसाब से प्रिकॉशंस ले रहे हैं, बट ये क्लैरिटी है। फिर कल उठ के कोई ऐसा बोले कि नहीं हमें तो नहीं पॉसिबल, हमें डर लग रहा है, फैमिली है, तो इट गिव्स अ नेगेटिव इंप्रेशन। ऐसा करना ही क्यों? आप लोगों को अगर क्लैरिटी नहीं है तो नहीं करना है तो ये कि हमें जॉब पे करना है नहीं करना है, आपको भी क्लैरिटी है, सिचुएशन यही है। और एवरीवन नोज कि ऐसा कुछ है नहीं। लोग बोलते हैं कि जैन तक सॉल्व हो जाएगा, मार्च तक, ये सिचुएशन चलता ही रहेगा। लाइक लोग बोल रहे थे कि सितंबर तक खत्म हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएगी, ऐसा। सो डोंट थिंक अबाउट ये, कुछ प्रैक्टिकली सोचो, कुछ पॉसिबल नहीं है। बहुत लोग हैं दुनिया में, यू कुड, आपको वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, आपका एमबीए कंप्लीट हो ही जाएगा। सो प्रैक्टिकल बनो, जितनी भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आप ग्रैब करने का ट्राई करो। ऐसा मत सोचो कि बाद में अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत लोग टैलेंटेड है, उनको जॉब में से निकाला गया है, बहुत लोग है हमारे मनसुख में, लाइक एक भी कैंडिडेट को हमने फायर नहीं किया है। सो दैट इज द गुड साइन। लाइक हमने किसी को नहीं निकाला, लाइक बहुत लोगों को ले ऑफ कर दिया है, लोग बोले सैलरी कम कर दी, हमने नहीं किया है। वी ट्राई अवर बेस्ट, हमने वर्क फ्रॉम होम दिया लोगों को 6 मंथ तक। सो बेसिकली वी आर लाइक, थिंक अबाउट पॉजिटिव, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी चीजें ये है। लाइक अभी कम्स टू द जॉब, अब प्रोफाइल के बारे में आते हैं कि भाई डेरिवेटिव्स क्या है। डेरिवेटिव्स क्या होता है बेसिकली, 99% लोगों को तो पता ही नहीं होता डेरिवेटिव्स क्या होता है। लाइक फिनेंस के है तो चलो चले जाते हैं, डेरिवेटिव्स है तो एक डेफिनेशन रट्टा मार देंगे, लाइक अंडरलाइन जो भी है। तो डेरिवेटिव इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। ऐसा फिनेंस में बोलो तो डेरिवेटिव्स बहुत बड़ा होता है। लाइक ये हर एक कंपनी में होता है, ऐसा नहीं है कि भाई मनसुख में होता है। लाइक डेरिवेटिव्स के 2 होते हैं, एक तो होता है फॉरवर्ड भी होता है, एक फ्यूचर बेस्ड भी होता है जो एक्सचेंज ट्रेडेड बोलते हैं, और फॉरवर्ड जो होता है वो भी होता है। तो ये फॉरवर्ड जो होता है ये टीसीएस, इन्फी, उस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन में जो होती है जहां इंटरनेशनली उनका कोई ट्रांजेक्शन होता है, लाइक करेंसी में लोग स्वैप करते हैं, तो वो बेसिकली ओवर द काउंटर होता है। और बेसिकली जो मनसुख करती है वो बेसिकली क्या करते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड करती है। एक्सचेंज ट्रेडेड में क्या आता है, ऑप्शन आता है, फ्यूचर आता है। सो बेसिकली वी आर वर्किंग इन ऑप्शन सेगमेंट, और ऑप्शन सेगमेंट में हम बेसिकली एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आज हमने कॉल बाय कर लिया, पुट बाय कर लिया, कॉल सेल कर लिया, पुट सेल कर लिया। वी आर नॉट थिंकिंग लाइक रिटेलर काइंड ऑफ, वी आर इंस्टीट्यूशनल, वी आर प्रोफेशनल ट्रेडर्स, वी आर प्रोफेशनल, लाइक हैंडलिंग ऑल, सब कुछ हमारा जो होता है वो प्रोफेशनली होता है। ऐसा नहीं है कि भाई हमें मन में आ गया तो हम ये कर दे। वी हैव अ प्रोसेस कि हम कौन से स्ट्रेटेजी में काम करेंगे, क्या चीज करेंगे, कैसे करेंगे, कितना फंड आपको मिलेगा, क्या चीज है, और कैसे ग्रेजुअली आप ग्रो हो सकते हैं। सो बेसिकली वी आर लाइक कंप्लीटली प्रोफेशनल। वी आर नॉट लाइक कि चलो भाई कुछ भी कर लिया, ट्रेडिंग है, ऐसा ऐसा, वो भी नहीं है, राइट। दूसरा कि हम डेरिवेटिव्स में कैसे काम करते हैं, डेरिवेटिव्स में कैसे स्ट्रेटेजीज काम करती है। जैसे मैंने बता दिया कि हम ऑप्शन स्ट्रेटेजीज काम करते हैं, कैसे करते हैं। तो आप लोग अभी शायद आपने सुना होगा आर्बिट्रेजर करके होते हैं। आर्बिट्रेजर, आर्बिट्रेजर क्या होते हैं, वो लोग जो होते हैं आर्बिट्रेजर की, जो क्या होता है कि मिस प्राइसिंग फाइंड करते हैं। मिस प्राइसिंग क्या होता है, लाइक देयर आर 2 मार्केट, लाइक मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि एक एनएससी और बीएससी है, 2 मार्केट है, ठीक है। एनएससी में भी रिलायंस शेयर ट्रेड होता है, बीएससी में भी रिलायंस ट्रेड शेयर होता है, ठीक है। तो दोनों का प्राइस जो होता है वो डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, रिलायंस एनएससी में महंगा होता है तो बीएससी में सस्ता होता है। सो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो सस्ता उसको बाय कर लेते हैं और जो महंगा है सेल कर देते हैं। ये एक सिंपल लैंग्वेज में है, ऐसा नहीं है कि भाई इतना इजी है, इतना इजी नहीं है। ये खाली एक सिंपल लैंग्वेज में कि एक ये आर्बिट्रेज का कंसेप्ट है कि ऐसा होता है कि नॉर्मली कि एक सस्ता होता है उसको हम बाय करते हैं, महंगा उसको सेल करते हैं, और जैसे ही वो स्प्रेड रिवर्ट हो जाता है, जैसे कि बीएससी में महंगा हो गया या एनएससी में सस्ता हो गया, तो हम उसको क्या करते हैं, रिवर्स उल्टा देते हैं, यानी कि रिवर्स ट्रेड ले लेते हैं। तो वैसे करके हम क्या करते हैं, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। अब जो मैंने कैश टू कैश सेगमेंट का आपको बताया कि रिलायंस इधर एनएससी में बाय किया, बीएससी में सेल किया, तो क्या होता है कि ये तो सिंपल है, तो सिंपल जितना होता है उतना पब्लिक जल्दी सब लोग कर लेते हैं। तो ये क्या यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है कि आपको समझाया, आपको तुरंत समझ में आ गया, तो ये तो हर कोई कर लेता है। तो ऐसे मार्केट में कभी भी अपॉर्चुनिटी लंबी नहीं रहती। सो हम ये मानते हैं कि जहां चैलेंजेस होते हैं वहीं अपॉर्चुनिटीज होती है। जितना इजी चीजें होगी उतना क्या हो जाएगा, वो चीजें जल्दी कैप्चर हो जाएगी। जितना डिफिकल्ट होगा उतनी चीजें डिफिकल्ट भी रहेगी, बट उसका रिटर्न भी उतना ही आएगा। So basically we are finding such kind of opportunity in derivative segments. We basically working in like
ऑप्शन कैलेंडर स्प्लिट स्ट्रेटजीज, रेशियो काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज, वॉलेज काइंड ऑफ स्ट्रेटजी। सो जितने भी लोग इधर स्टूडेंट्स है, अब गो थ्रू, अब ऑनलाइन पढ़ो कि क्या होता है, क्या स्ट्रेटजीज होती है। आप अपने फैकल्टी से ले लो एक्सपीरियंस कि भाई कैसे होता है, क्या होता है, उनको बेसिकली पता ही होगा, वो लोग पढ़ाते हैं। और बेसिकली मोस्टली जो फिनेंस में होता है वो स्टॉक मार्केट में तो काम करता ही होता है, तो उसको थोड़ा आइडिया तो होता ही है। और फिर भी आइडिया ना है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, कि आप मैसेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो थ्रू फैकल्टी। तो बेसिकली आप लोगों को ये सब चीजें समझनी चाहिए। ऐसा अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो, हाँ, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है, ओके, लेट इट गो। आपको जहाँ इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट वाला आपका एरिया है, जो करियर उसको परस्यू करो। कोई ऐसा नहीं है कि भाई स्टॉक मार्केट सही है गलत है। ये मैंने पहले भी बताया कि जब मैं मनसुख आई, स्टॉक मार्केट आया, तो लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में जॉब नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। लोगों ने इवन ये भी बोला था कि भाई एंगेजमेंट नहीं होगी, मैरिज नहीं होगी, इश्यू आएंगे, ये आएंगे। कुछ होता नहीं। अल्टीमेटली आप कहीं भी जाओ, आप आपको प्रोफेसर बनना है, कुछ भी बनना है, बट आप अपने मन से करोगे ना, डेडिकेटेड, कि मुझे ये चीज करनी है, तो आप डेफिनेटली लोगों को आप इग्नोर कर सकते हो। जैसे कि मैं आपका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था। आई एम बिलोंग टू मारवाड़ी फैमिली, राइट। और हमारा क्या होता है, हमारे में जॉब नहीं करते नॉर्मली, हमारा क्या होता है, बिजनेस होता है। पापा पहले से बोलते हैं कि तुझे बिजनेस ही करना है, यू डोंट जॉब करके क्या फायदा, कुछ नहीं मिलेगा, ये बोले। सो मैंने थर्ड सेम कंप्लीट होते ही मनसुख ज्वाइन करने का सोचा, और मैंने बोला ठीक है, मुझे करना है तो मैं ट्राई करता हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं कर लूंगा। तब मैंने कुछ नहीं देखा था मनसुख में क्या है नहीं है, बट मुझे लग रहा था कि स्टॉक मार्केट कुछ ऐसी चीजें जो मुझे लग रहा है कि नंबर है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ मजा आएगा ऐसा। 18 मंथ का बॉन्ड भी था, तो फैमिली भी कन्विंस हो गई, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ज्वाइन किया, और आज के डेट में ऐसा है कि फादर, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जेन्युइन बता रहा हूँ, कि फादर ये बता रहे हैं कि भाई अपने जो फैमिली है ना, उनको भी है ना, आप तू स्टॉक मार्केट में सेटल कर, कि तू जो कर रहा है ना काम, उसमें सेटल कर, वो लोग बोल रहे हैं। तो दिस इज द डिफरेंस, कि जो 9 साल ये बोल रहे थे कि तुझे ये नहीं करना चाहिए, फैमिली बिजनेस करना चाहिए, और अभी 10 साल होने के बाद सब लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं तुझे ये करना चाहिए। सो अब समझो कि आपके गट्स है कि आपको करना ही नहीं करना, लोग फिर चेंज हो जाते हैं, लोगों के व्यू चेंज हो जाते हैं। आप जैसे ही ग्रो होंगे, लोगों के व्यू चेंज हो जाएंगे कि ये है, वो है, ऐसा है। सो आप अपने बारे में सोचो कि आपको क्या करना है। एमबीए है तो एमबीए में आप जितने भी एरिया है, जितने भी सेगमेंट है, जैसे अभी आपने बैंक से भी किया होगा, एनबीएफसी में भी इंटरेक्ट किया होगा, जितने भी आ रहे हैं, अभी कैपिटल मार्केट से आप इंटरेक्ट करो, मैं कैपिटल मार्केट में, हम नॉर्मली बोला जाता है कि वी आर डायरेक्टली मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो अब उसके बारे में जितना भी उतना फाइंड आउट करो कि क्या चीजें, कौन सी चीजें मुझे सूटेबल होगी, क्या चीजें मुझे अच्छा लग रहा है, कौन सी चीज मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ये सब चीजें फाइंड आउट करो। सो यू गेट अ रिजल्ट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और लोग आपको, आपकी बातें मानेंगे। ऐसा एक इंटेलिजेंट नहीं था, मुझे लोग कॉलेज में जानते भी नहीं थे। आप समझो कि अभी मेरा कॉलेज में लोगों बात हो रही है, ऐसा कि कभी कॉलेज में कोई फैकल्टीज मुझे ऐसे पर्सनली नहीं जानती थी कि कोई भाई ये बंदा है, ये है, कोई नहीं जानता था ऐसा। सो थिंक अबाउट कि आपको क्या करना है, आप ये पहले से सोच के बैठो कि आपको करना क्या है, ऐसा कि कौन से फील्ड में जाना। और कोई भी चीज लो तो सामने वाले को भी देखो कि भाई उसका भी टाइम है। आप जितना एथिकल रहोगे उतना सामने वाला भी एथिकल रहेगा। लोग बोलते हैं कि कंपनी ऐसी होती है, कभी ये भी देखना चाहिए कि एम्प्लॉय कैसे होते हैं। ऐसा सब कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं, आप ये सोचो कि आप अपने आप को किस लेवल पे इंप्रूव करना चाहते हो। आप उस लेवल पे इंप्रूव करोगे तो आपको लोग रखेंगे, ऐसा छोड़ने का ट्राई नहीं करेंगे, नहीं भाई ये बंदा कैसे भी किसी हाल में मुझे ये चाहिए। कुछ भी अब कंपनी में डिमांड भी करोगे तो यू गेट इट रिजल्ट, कि भाई ये बोल रहा है तो इसको देना ही है, ये बहुत वैल्यूएबल एम्प्लॉय है, राइट। सो थिंक अबाउट इट। मेरे हिसाब से मोस्टली यही हो जाए कि लोग जॉब करने के चक्कर में जॉब ही करते रहते हैं। मेरे हिसाब से ये है कि आपका इंटरेस्ट एरिया परस्यू करो, दैट इज द बेस्ट। और स्टॉक मार्केट में अगर किसी को इंटरेस्ट है बेसिकली, ठीक है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, गो थ्रू, बहुत अच्छा। आप कोई भी चीज पे जाओ, इक्विटी में जाना है, आईपीओ मार्केट में जाना है, कहीं भी जाना है, रिटेलिंग में जाना है, डेरिवेटिव्स में आना है, या हमारी कंपनी में आना है, तो अब पूछो कि एलजी में कितने लोग हैं, एलजी के कितने लोग इधर गए हुए और कहाँ से कहाँ पहुंचे हुए, राइट। अब दूसरी लिमिटेशन ये भी आती है कि भाई हमारी कंपनी है मनसुख है, मेरा सीधा सर से बात होता है तो यही होता है कि आपकी कंपनी का पैकेज बहुत कम होता है, ऐसा बेसिकली। मैंने बोला यस राइट, ठीक है। मैंने बोला ये है, और ये हम उससे ज्यादा नहीं दे सकते। इसका रीजन भी ये है कि एक्चुअली सर क्या है पता है, 6 महीने तो एक कैंडिडेट को सीखने में ही लगता है,
और वो भी प्रैक्टिकल। आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है प्रैक्टिकल, अगर कुछ लॉस हो जाए तो एक्चुअल मनी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आप डमी ट्रेड ले रहे हो, ये है, आपको एक्चुअल ट्रेडिंग करना है। तो 6 महीने तो ऐसा होता है मोस्टली, हमारा एक्सपीरियंस है कि 6 महीने तो वी आर इन्वेस्टिंग ऑन एम्प्लॉय। तो हमारे लिए ये कि वो 6 महीने हम उनके इन्वेस्ट कर देंगे, अभी 6 महीने इन्वेस्ट करके हमें उनको रिटर्न कितना कमाना है, हम बेसिकली 18 मंथ का बॉन्ड करते हैं। सो हम ये चाहते हैं कि एक ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए वो हमें कुछ अर्निंग करके दो। सो दैट इज बेसिकली हमारा ये लगता है कि ठीक है, वी आर लाइक ठीक है, डिसेंट है, और वी गेट अ कैंडिडेट। ऐसा नहीं है कि नहीं है कि हमें कैंडिडेट मिल रहे, जो मैंने समझो ना 4 से अभी 250 तक पहुंचे, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि नहीं मिले कैंडिडेट, और बहुत अच्छे मिले। बट कंसिडर ये करना चाहिए, अगर आप कंपेयर करते हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई अभी इस कंपनी में लाइक 2 लाख का पैकेज आ रहा है, इस कंपनी में 5 लाख का आ रहा है, इस कंपनी में 8 लाख का आ रहा है। आप ये देखो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर 3 to 4 इयर्स के बाद आपकी सर्वाइवल कैसा है कंपनी में, प्लस आपकी ग्रोथ कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी सिद्धार्थ सर से, तो बोल रहे थे कि बायजूस करके कंपनी है, तो वो 8-9 लाख का पैकेज देते थे। लोग पैकेज से लाइक बहुत 8-9 लाख है तो एक्सेप्ट कर लेते। बट आप ये भी सोचो कि उधर 4-5 साल तक कोई टिका है, जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं कितने लोग टिके, उनकी ग्रोथ क्या है, उनका पैकेज के टर्म में क्या है, वो आप देखो प्रैक्टिकली। ऐसा नहीं कि भाई अभी गए आपको 6 महीने थोड़ा ही काम करना है, लाइक अभी तो आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। जैसे मैंने 2011 में जर्नी की थी, तो आपको लोगों की अभी 2020 में जर्नी स्टार्ट होगी। सो कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि लॉन्गर पीरियड में आप लोगों की कैसी ग्रोथ है। और समझो मैं मारवाड़ी में मेरे पापा को चेंज करना, लाइक वो उनका रिजिड होता है, उनका माइंडसेट चेंज करना मतलब कि मैं कहीं ना कहीं उस लेवल पे हूं तो वो लोग मुझे मान रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज इजीली कन्विंस है, बट हाँ कहीं ना कहीं ग्रोथ है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को फोकस वही करना चाहिए, कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई ठीक है चलो इधर पैकेज मिल जाएगा, फिर 2-3 साल के बाद आपको पता चला कि वो तो हायरिंग फायरिंग वाला है और कुछ नहीं, आपने टारगेट अचीव नहीं किया, समथिंग ऐसा। मनसुख में ऐसी चीजें नहीं है, अगर आप डेडिकेटेड करोगे तो आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी। रीजन कि हम एम्प्लॉय को रख भी इसलिए सकते कि इनिशियली हमें उसको कम देना है। अगर यही पैकेज हम फॉर एग्जांपल किसी का 4 लाख कर दे, तो उतना ही प्रेशर उस पर आएगा, उसको 6 महीने की जगह उसको 3 महीने में परफॉर्म करना पड़ेगा। और हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि पॉसिबल नहीं है कि हम फालतू में किसी को प्रेशराइज करें, वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है कि जो चीज 6 महीने में तैयार होती है वो 3 महीने में करने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं है ना वो बैलेंस सही नहीं होगा ऐसा। सो वी थॉट कि भाई ठीक है। सो बेसिकली तो मनसुख इसलिए वो पैकेज नहीं दे रही, बट मेरे हिसाब से आप डेरिवेटिव के कोर्सेज बाहर सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। खाली आपको ट्रेनिंग लेने के या प्रैक्टिकल आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के लिए इसकी फीस कितनी है, जस्ट आप गूगल पे सर्च करो, मिलेंगी 80-90,000 होते हैं। उसमें गिन के आपको 7-8 सेशन मिलेंगे, वो भी आपको थ्योरेटिकल मिलेंगे। प्रैक्टिकली आप जब जाओगे तो आपको लगेगा कि कितना टाइम होता है, कितना रेवेन्यू सब लिंक होता है। ऐसा नहीं है कि भाई सॉरी। तो बेसिकली इतना ओवरऑल होता है कि सब लोगों पे होता है ऐसा प्रेशर, ऐसा नहीं है कि भाई इजीली है, इजीली जो चीज मिलेगी वो इजीली छूट भी जाएगी, ये मान के चलना। ओके हाँ सर, नेक्स्ट आपकी कोई क्वेरी ऐसा कुछ? So I think there is a query from Madhu. She wants to ask, is there any reason for bond? I think you've already answered that since bond is of 18 months, out of which 6 months is training. So Yes. that is the reason why there is a 18-month bond. यार बॉन्ड की एक अच्छी है, जब मैंने बॉन्ड साइन किया था तो मुझे ये लगा था कि कंपनी की कहीं ना कहीं जेन्युइनिटी है कि मुझे 18 महीने रखने की ट्राई कर रही है। अदरवाइज कंपनी व्हाट दे डिड 2-3 महीने रख के उसको हायरिंग फायरिंग करना होता है। तो ये चीज मैंने पॉजिटिव ली थी, मैंने बोला कंपनी क्यों बॉन्ड करवाएगी, कोई ऐसी चीज होगी जो उनके लिए इंपॉर्टेंट होगी। और एट दैट टाइम मैंने तो 24 मंथ का बॉन्ड किया था, 2 साल का था तब, अभी हमने 18 मंथ का किया है। तो मैंने कहीं ना कहीं ये सोचा था कि कुछ तो चीज है कि जो कंपनी लाइक सीक्रेसी रखना चाहती है इसलिए बॉन्ड रखेगी, अदरवाइज तो कौन क्यों रखेगा। अगर आप सेल्स में चले जाओ कोई बॉन्ड ही नहीं रखेगा। उनके लिए तो अच्छा ही है कि 2-3 इंश्योरेंस जैसे पॉलिसी है, जितने भी आप रिलेटिव्स के टारगेट लेके आ जाओगे फिर उनको हायरिंग फायरिंग कर देंगे, आपके रिलेटिव्स भी आपके से नाराज हो जाएंगे कि भाई ये प्रोसेस नहीं कर रहा, ये है XYZ। सो बेसिकली मैंने ये देखा हुआ इंश्योरेंस में भी ऐसा होता है, मार्केटिंग में भी होता है, डिमेट अकाउंट के लिए इतना प्रेशर होता है, ये चीज होता है, तो उधर बॉन्ड नहीं करवाएंगे। उनका लॉजिक है भाई हायरिंग फायरिंग इतनी फास्ट कर लेते हैं, तो उनके लिए ये प्रोसेस का है, 2-3 महीना एम्प्लॉय टेकेगा तो ठीक है उनके लिए, नहीं तो कोई नहीं है। तो उनका इन्वेस्टमेंट ही कितना है, लॉजिकली देखो तो कुछ नहीं है। तो मैंने एक चीज पॉजिटिव यही ढूंढी थी, मैंने बोला कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि अहमदाबाद में कोई कंपनी है जो फाइनेंस के कोर फाइनेंस देती है,
बेसिकली सब लोग क्या डिमेट सेल करवाते, ये सेल करवाते या टारगेट देते। एक ये कंपनी थी जिन्होंने कोर फाइनेंस का मुझे बोला था, हार्डकोर फाइनेंस। आप देखोगे, आप कहीं सर्च करोगे तो हार्डकोर फाइनेंस का मतलब क्या होता है कि आपको रिटेलर क्लाइंट से कोई डिस्कस नहीं करना है, प्योर फाइनेंस। लाइक आपको एक्सेल पे वर्क करना है, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में समझना है, तो उस पे इतना होता है कि प्योर फाइनेंस आपको रेयर मिलेगी। मेरे हिसाब से अहमदाबाद में रेयर मिलेगी, एक दो कंपनी होगी जो आपको देती होगी, बट ऐसा प्रोफाइल नहीं होता है कि भाई हार्डकोर फाइनेंस नहीं होता। तो मैंने कहीं ना कहीं ये सोचा था ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट में ये भी समझ में आया था कि बॉन्ड की वैल्यू क्या, लाइक हमेशा सबकी यही क्वेश्चन होता है कि बॉन्ड की वैल्यू क्या। तो बेसिकली हम बॉन्ड की वैल्यू क्या रखते हैं, जो आपकी सैलरी का 6 मंथ होता है ना, वो हम बॉन्ड की वैल्यू रखते हो। तो हमारा ये कंसर्न नहीं होता कि हम किसी के बॉन्ड से पैसे कमा ले, ये करना होता तो कोई मतलब ही नहीं है। तो लेट्स से कि आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल जो भी एक्स है, तो हम उसको 18 मंथ के बीच में आप ब्रीच कर लेते हो, तो 6 मंथ के जो आपकी सैलरी होती है उसका आपको 6 मंथ की सैलरी आपको पे करनी है। लेट्स से कि आपकी 100 रुपए सैलरी है पर मंथ, तो आपको बीच में से आपने 18 मंथ के अंदर एग्जिट मार दिया तो आपको 600 रुपीज पे करनी है। So whatever your salary, so into multiplier of 6 times. So basically हमारा ये 6 टाइम का भी कंसर्न ये है कि हम 6 महीने उस पर मेहनत करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अगर वो कोई नहीं रहता तो हम एटलीस्ट उससे सैलरी तो कवर कर लें। सो ये भी एक बेसिकली हमारा था कि कंसर्न के क्या है, बॉन्ड का होता है बेसिकली सबको होता है, बट आई डोंट नो कि भाई आप कहीं भी कंपनी में जाओगे 6 महीने तो नहीं रहोगे, एटलीस्ट आप 18 मंथ तो दोगे ही ना, अदरवाइज आप क्या सीखोगे। ये थोड़ा है कि ना 6 महीने जंप करो, नेक्स्ट टाइम कोई कंपनी भी आपको रिक्रूट नहीं करेगी। 6 महीने में आप जंप करोगे तो ये बोलेगा ये रिटेनेबल ही नहीं है, कि कैंडिडेट कहीं ना कहीं घूमता रहेगा ऐसा। तो आपकी कंसिस्टेंसी भी इतनी मायने रखती है कि आपको क्या करना है ऐसा। तो 18 मंथ आई थिंक डिसेंट टाइम, और बॉन्ड का मैंने जो लॉजिक है वो भी आपको समझा दिया ऐसा। Mukesh, I think you have given us a new perception on bond, which is really good. It's a positive perception because bond के नाम से बहुत लोग negative perception लेके चलते हैं, पर आपने हमें एक positive perception दिया है that it's good actually. The company wants to retain you. So in today's economy, I feel according to you, bonds are good because the company wants to retain you for that long period of time. So thank you Yes, for providing this perception. So मैं भी इसमें students, एक और पॉइंट yes. ऐड करना चाहता हूँ कि बेसिकली मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि लाइक एटीट्यूड और नॉलेज, दो में से कौन सी चीज अच्छी है। ऐसा कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है बट एटीट्यूड उसका हर चीज पे नेगेटिव होता है, और एक बंदा है जिसका नॉलेज थोड़ा बहुत ठीक ठाक है बट उसका एटीट्यूड हर चीज में लाइक बहुत पॉजिटिव है। सो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो बंदे का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है उसका नॉलेज कम होगा ना तो वी रिक्रूट, बट अगर कोई इंटेलिजेंट और उसका एटीट्यूड नेगेटिव है तो हम नहीं करेंगे, भले इंटेलिजेंट होने के बाद भी। रीजन के एटीट्यूड अच्छा होगा ना तो वो नॉलेज भी गेन कर लेगा, बट एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा ना तो उसको आता होगा तो वो अलग में ही रहेगा, उसके पास कभी नॉलेज पूरा आएगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं एक फिलोसॉफी हमें लगती है कि भाई जिसका भी हो एक पॉजिटिव आपको अप्रोच तो रखना ही पड़ेगा। लाइक कोई भी सिचुएशन है आपको करना ही है, लाइक कोई भी सिचुएशन है। तो ये एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि आप कोई भी चीज को पॉजिटिव एंगल से देखो। ऐसा मत सोचो कि कंपनी ऐसा करेगी वैसे, कंपनी के पास कौन सा टाइम होता है। लाइक कोई भी XYZ कंपनी है, किसी के पास टाइम नहीं है, कौन बैठेगा एम्प्लॉय के लिए इंटरव्यू लेगा ये लेगा, किसके पास इतनी प्रोसेस का टाइम होता है, कोई नहीं सोचेगा। सो थिंक कि पॉजिटिव वो क्यों करना चाहते हैं। हमारा कोई इंटेंशन ये नहीं होता कि हम 6 महीने की भाई उसका बॉन्ड अमाउंट लेके हम ये कर, हमें ये बिजनेस करना होता तो मतलब ही नहीं है ना। लाइक वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि 6 टाइम्स ऑफ सैलरी कंपनी का लाइक एम्प्लॉय का अर्न कर दे, हम क्यों करें। हम लाइक एज मैंने भी तो ज्वाइन किया था 2 साल का, तो कंपनी ने मेरे साथ ऐसा कभी नहीं किया, और मेरी टीम में हमने कभी ऐसा नहीं किया कि हमने किसी के लिए सैलरी के लिए ऐसा किया। और हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास लाइक वी हैव मल्टीपल थिंग्स टू ग्रो, लाइक ऐसा नहीं है कि भाई इसके लिए ऐसा। सो बेसिकली कोई भी चीज में यही होता है। यस मैम, और कोई पॉइंट भी है? Students, please ask questions related to derivative markets from the guy himself, from the horse's mouth. So he is the person who is into the derivative markets. Actually, Mukesh, I am teaching them derivative markets. So please grill them, ask them certain technical questions to let me know कि ये मेरी क्लास में सुनते हैं या नहीं सुनते हैं. So if you डेरिवेटिव्स have, के yes, if you have any questions, please ask them. So it will be like a sort of a test for me also. डेरिवेटिव्स इटसेल्फ लाइक कॉम्प्लिकेटेड है। लाइक आई एम थिंकिंग कि भाई इतना इजी भी नहीं होगा। मैं बी फ्रैंक में अगर बोलूं तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी बस को बोल मुकेश दो। ऐसा मत बोलो because I hear that a lot in the class.
यस मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप थ्योरेटिकल समझाओगे, बट जब एज अ एमबीए मैं ये मानता हूँ कि प्रैक्टिकल चीजें आप अप्लाई नहीं करोगे, वहां तक आपकी क्लैरिटी इतनी नहीं आएगी। लाइक हम पढ़ते ही थे एमबीए में, हम लाइक केस स्टडीज भी करते, तो वो एक्चुअली मायने रखता है। बट आप बोल रहे हो तो मैं ट्राई करता हूँ ऐसा कोई टेक्निकली। एक्चुअली बेसिकली तो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या है ना, उसमें पुट ऑप्शन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हेलो तो यस यस हेलो। सर, ये वीसेट टेक्नोलॉजी क्या आती है? इसमें मैंने मनसुख को सिक्योरिटी में जब अप्लाई कर रहे थे तब देखा था इसके वीसेट टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसा कुछ। वीसेट बेसिकली क्या होता है कि आपको एक्सचेंज से ब्रॉडकास्ट चाहिए, ठीक है। तो एक्सचेंज से जो ब्रॉडकास्ट चाहिए, लेट से आप कभी भी मैंने ट्रेड ली XYZ, ठीक है, तो वो ट्रेड कंफर्मेशन कहाँ से आएगा, या मेरे पास डेटा कहाँ से आएगा कि ये बायर है ये सेलर है, तो वो एक्सचेंज से आएगा। तो ये जो ब्रॉडकास्ट प्रोवाइड करने की जो टेक्नोलॉजी है ना, जो एक्सचेंज लोगों को प्रोवाइड करता है, बट अभी अभी बेसिकली एक्सचेंज ने लीज लाइन कंपलसरी कर दिया है कि लीज लाइन थ्रू उनको डेटा फीड करेगा या फिर इंटरनेट के थ्रू। बट एक्सचेंज अगर किसी ब्रोकर को डेटा देता है तो लीज लाइन के थ्रू देता है, और ब्रोकर किसी को कोई डेटा देता है तो उसको इंटरनेट के थ्रू देना होता है। लीज लाइन एक ऐसी चीज होती है कि जो कभी भी आपकी ब्रेक नहीं होती, वो कंटिन्यूस चलती रहती है, वो कमिटमेंट होता है, जो भी टेलीकॉम कंपनी होती है उनका कमिटमेंट होता है लीज लाइन का। इंटरनेट क्या होता है कि आपको पता ही होगा, इंटरनेट कभी आता है जाता है आता है जाता है, तो वो हमारी इंडस्ट्री में नहीं चलता। हमें थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड लेते हैं, या कोई भी स्टॉक मार्केट में अच्छा ट्रेड करता होगा तो उसके लिए ये, उसके लिए 2 मिनट में मायने रखेगी, 2 मिनट में स्प्रेड, यानी कहीं से कहीं शेयर 5% हिल जाएगा, 10% हिल जाएगा, तो उनके लिए कंटिन्यूस ब्रॉडकास्ट चाहिए। क्या जो भी ट्रेड हो रहा है, तो क्या हर डेटा एक्सचेंज आएगा, एक्सचेंज से कंफर्म होके फिर आएगा, तो उसके लिए एकदम स्पीड चाहिए, तो उसके लिए एकदम हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बेसिकली क्या है कि आपको एक्सचेंज से जो ब्रॉडकास्ट आता है ना उसके लिए होता है, बट ये पुरानी हो गई नाउ। लाइक अभी सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो रही है, एक्सचेंज में काफी चीजें इंप्रूवमेंट हो रही है। ओके सर, ओके, थैंक यू। There is a question from Nirav. He wants to ask how many sub-broking firms are there of Mansukh in Gujarat? आई डोंट नो। Okay. रीजन ये है कि मैंने जैसे फर्स्ट बताया था कि वी आर नॉट लाइक इन रिटेलिंग पार्ट, वी आर बेसिकली वी आर like we are getting a fund from the companies and we are generating a revenue on that. So this is a hardcore finance, we don't know how much like retailer or like sub broker, we are like हमारा काम नहीं, वो marketing में है, और there are lots of other companies which are providing these facilities, like Zerodha is giving a tough competition in that segment. So basically as a company we are not interested much in a sub brokership, or बेसिकली हमारा जो है ना जो कंसेप्ट, वो हमारा डेरिवेटिव्स में आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी को डेवलप करने का ही। सो दैट इज द मेन एम। सो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, सॉरी, कि ये सब ब्रोकरशिप मुझे नहीं पता और मैंने कभी सोचा भी नहीं है। दिस इज अ रिटेलिंग पार्ट, लाइक सेगमेंट होता है, हर जगह सेगमेंट होता है कि रिटेलिंग होता है, इंस्टीट्यूशनल होता है, ये होता है। सो वी हैव अ डिफरेंट पार्ट एंड दैट इज अ डेरिवेटिव, एंड इन पर्टिकुलर वी आर डूइंग आर्बिट्रेज इन कंपनीज फंड, दैट इज। सो सॉरी मैम, एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट सब ब्रोकरशिप। That's okay. I have. Okay. So there is a question from Meera. She wants to ask that how to develop technical analysis skills, and can you discuss few trading strategies? Oh, another point. This is not my area. I have रीजन ये कि मेरा जो भी एरिया था वो एकदम क्लैरिटी के साथ था कि मुझे क्या करना है। मैं पहले समझा देता हूँ कि क्या होता है टेक्निकल, क्या होता है फंडामेंटल, क्या होता है और हमारा पोर्शन क्या होता है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है डायरेक्ट, लाइक आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, या आपको लाइक डायरेक्ट कैश टू कैश ट्रेडिंग करना है, तो आपको टेक्निकल चाहिए या फंडामेंटल चाहिए। और फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही कॉन्ट्रा है, दोनों ही अपने अपने जगह पे सही है, ठीक है। फंडामेंटल ये बोलता है कि मैं 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करूंगा और मेरे लिए ये चीज है। टेक्निकल ये बोलेगा मुझे 1 वीक के लिए करना है या 2 वीक के लिए करना है, तो वो टेक्निकली देखेगा कि ये पोजिशन क्या है। तो बेसिकली टेक्निकल क्या होता है कि बायर और सेलर के बिहेवियर के हिसाब से टेक्निकल में लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। और फंडामेंटल में क्या होता है कि कंपनी का बिजनेस कैसे ग्रो होगा, क्या होगा, तो वो फंडामेंटली जाएगा। तो टेक्निकली ये एक पोर्शन है, और हमारा जो पोर्शन है वो बेसिकली डेरिवेटिव सेगमेंट्स में है। तो डेरिवेटिव्स में हमारा क्या होता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें एक आर्बिट्रेज सेगमेंट भी होता है। लाइक 3 टाइप्स होते हैं, स्पेक्युलेटर होते हैं, हेजर्स होते हैं, आर्बिट्रेजर्स होते हैं। सो वी आर इन द आर्बिट्रेजर फील्ड। हम कोई स्पेक्युलेशन नहीं करते। आपको स्पेक्युलेशन करना है तो आपको टेक्निकल आना जरूरी है या फंडामेंटल आना है,
बट हमारा तो काम ही कैसा, मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दिया था कि रिलायंस है, बीएससी में कम रेट पे मिल रहा है और एनएससी में हायर रेट पे मिल रहा है, सो वी फाइंड दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड वो अपॉर्चुनिटी डाल के हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं. दिस इज सिंपल टर्म, बट डेरिवेटिव्स में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है, बट इट विल टेक टाइम, इसीलिए हम 6 महीने लेते हैं. सो मैम आई एम नॉट राइट पर्सन के टेक्निकल के बारे में मैं उनको कुछ गाइड कर पाऊँ. हाँ, मेरा जो पोर्शन है वो आर्बिट्रेज है. सो माइट बी हैव यू हर्ड कि आपने आर्बिट्रेज भी पहली बार सुना हो, ये भी हो सकता है. सो हमारा जो पोर्शन है वो आर्बिट्रेज सेगमेंट में है. Okay, there is a question from Jasmita. She wants to ask any tips for derivative markets, how to learn practically. Mukesh, your mic is on mute. Yes. Yeah. Okay. So practically yes, you can learn a practical. आपको क्या करना चाहिए कि प्रैक्टिकल करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो थ्रू एनआईएसएम डेरिवेटिव एग्जाम. जो होती है एनआईएसएम की जो मॉड्यूल होती है उसकी डेरिवेटिव एक एग्जाम होती है. सो आपको वो एग्जाम क्लियर कर दो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल. तो आपका थियोरेटिकल पोर्शन है, जो भी आपको चीजें डाउट है वो उसमें सब कुछ आ जाता है. जैसे हमारा होता है कि एनआईएसएम आप डेरिवेटिव डीलर मॉड्यूल कर दोगे तो आपको काफी चीजें समझ में आ जाएगी. 80-90 चीजें समझ 80 to 90% चीजें समझ में आ जाएगी. तो आई थिंक एनआईएसएम डेरिवेटिव मॉड्यूल आप क्लियर कर दो. देन आपको प्रैक्टिकल सीखना है तो लाइक आप डिमेट अकाउंट खोलो. बट आई एम नॉट प्रेफरेबल कि मैं किसी को बोलूँ कि डिमेट अकाउंट खोलो, इट्स अ रिस्क ही. ठीक है, मेरा खुद का डिमेट अकाउंट नहीं है पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल. सो मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्लैरिटी के साथ मेरा खुद का नहीं है. बट फिर भी आपको अगर प्रैक्टिकली सीखना है तो क्या कर सकते हो, आपको ट्रेड तो लेनी पड़ेगी. फॉर दैट यू रिक्वायर डिमेट अकाउंट. सो डिमेट अकाउंट ओपन कर दो और उसमें क्या करो कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का आप उसका बिहेवियर ट्राई करो. जैसे कि आपको क्या करना चाहिए, सबसे इजीएस्ट स्ट्रेटजी टू लर्न इज स्ट्रेडल स्ट्रैंगल. तो स्ट्रेडल स्ट्रैंगल के बारे में आप समझना चालू कर दो. बट उसके पहले आपको एनआईएसएम क्लियर करनी पड़ेगी. एनआईएसएम क्लियर करने के बाद आप एक स्ट्रेटजी चूज कर लो. और मेरे हिसाब से स्ट्रेडल स्ट्रैंगल है विच इज अ रिस्कियर स्ट्रेटजी कंपेयर टू व्हाट वी आर डूइंग. सो मेरे हिसाब से कोई स्ट्रेटजी पे आप काम करना चालू करो. नेकेड ऑप्शन बाय करना, सेल करना, दैट इज नॉट अ लर्निंग पार्ट, इट इज अ स्पेक्यूलेशन. वी बेसिकली बिलीव इन स्ट्रेटजी. सो स्ट्रेटजी के थ्रू ही आपको लर्न करना चाहिए. सो फर्स्ट पॉइंट आपको एनआईएसएम क्लियर करनी है तो उसमें आपको थियोरेटिकल जो मैंने जो बोला स्ट्रेडल स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी है, सो आपको थोड़ा पता चलेगा स्ट्रेडल स्ट्रैंगल स्ट्रेटजीज क्या है. फिर उसके बारे में आप लाइक बहुत लिमिटेड रिस्क लेके कर सकते हो, बहुत लिमिटेड. मेरे हिसाब से योर पर्पस इज टू लर्न, सो आप लिमिटेड कर सकते हो. 2000-3000 काइंड ऑफ रिस्क लेके कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए. तो दैट इज फाइन कि आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल गेन होगा, बट उसके लिए टाइम लगता है. हमारी कंपनी में भी 6 मंथ लगते हैं. सो ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार कर दिया और आपको प्रैक्टिकल गेन पॉसिबल है. दैट इज नॉट पॉसिबल, इट विल टेक टाइम. सो ऑलमोस्ट अगर आप खुद कर रहे हो तो 1 साल भी लग सकता है. अगर आपको एज अ प्रोफेशनल कोई सिखा रहा है तो 6 मंथ भी लग सकते हैं. It's a question from Miraba again. She wants to ask, can you explain us about arbitrage trading, and in that, how can we identify security price at a lower price so that we can sell in future? यस, बेसिकली जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था कि भाई एनएससी में सस्ता है बाय कर लो, बीएससी में महंगा है सेल कर दो. सो ये बेसिकली एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म है आर्बिट्रेज का, राइट? टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? अब बात करते हैं कि हम डेरिवेटिव्स में बात करते हैं, तो डेरिवेटिव्स में हम आर्बिट्रेज कैसे करते हैं. लाइक देयर आर मल्टीपल ऑप्शन चेंज इन पर्टिकुलर इंडेक्स, स्टॉक्स और करेंसी में भी होते हैं, राइट? तो इंडेक्स में जो लोग काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी समझे तो अभी हर एक वीक के कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं, राइट? तो फॉर एग्जांपल अब लेट से कि मार्केट 11,000 है तो 11,000 पुट ऑप्शन है वो आपको, सॉरी 11,000 पुट है वो आपको अभी देखा जाए तो 1 अक्टूबर का भी अवेलेबल है, फिर 8 अक्टूबर का भी अवेलेबल है. सो हर वीक में हर थर्सडे की एक्सपायरी आपको अवेलेबल है. ठीक है, तो क्या एक्चुअली बेसिकली निफ्टी है, तो निफ्टी में क्या होता है हर एक स्ट्राइक के अलग अलग ऑप्शन है बट अंडरलाइन इज द सेम. ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, आई एम श्योर कि ये समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, आई थिंक ज्यादा टाइम लगता है. बट अलग अलग ऑप्शन चेंज होती है. जैसे कैलेंडर स्प्रेड में मैं बोलूँ कि 1 तारीख का भी ऑप्शन अवेलेबल है, 8 तारीख का भी होता है और सो ऑन सो हर वीकली ऑप्शन अवेलेबल होता है. तो हम क्या करते हैं कि उसकी अंडरस्टैंडिंग समझते हैं कि इसमें क्या रिस्क है, तो 8 का हम सेल कर लेते हैं,
फर्स्ट का बाय कर लेते या फर्स्ट का सेल कर लेते, एट्थ का बाय कर लेते, बेस्ड ऑन अवर अंडरस्टैंडिंग। सो इट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। सो उसके लिए मेरे हिसाब से 8-9 महीने टाइम लगता है ये सब चीजें जो समझने के लिए। सो ये इतना इजी भी नहीं है कि मैं 10 मिनट में या 1 मिनट में आपको समझा दूं कि भाई ये है और आपको आ जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। यू नीड टू गो थ्रू अ गूगल में जाके आप समझो कि आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी क्या होती है। इन्वेस्टोपीडिया इज अ बेस्ट वेबसाइट। सो आप उसमें सब कुछ चीजें मिल जाएगी, आर्बिट्रेज होता क्या है, आर्बिट्रेज डेरिवेटिव सेगमेंट में कैसे करता है। यूएसए इज अ बिग मार्केट, बिग। अगर किसी को यूएसए में करना है तो लाइक यूएसए इज अ बिग मार्केट इन दैट। लाइक इंडिया तो कुछ नहीं है ऐसा, समझो ना 1% है, जब यूएसए बहुत आगे है। तो इन्वेस्टोपीडिया में आपको मल्टीपल चीजें मिल जाएगी, बहुत चीजें। लाइक मैं बोल रहा हूँ ना कि ये पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री है, इसके लिए जितना भी बोलो उतना कम है ये सेगमेंट में काम करने के लिए। सो अभी मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा ना तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत टेक्निकल वर्ड हो जाएंगे ऐसा कि क्या होता है कैसे होता है। बट आप गूगल करो और उसमें चीजें समझने का करो तो धीरे धीरे बेसिकली समझ में आ जाएगा। कोई प्रैक्टिकल बंदा हो ना। मेंशन किया था वो कौन सा था? वेबसाइट सॉरी, मेंशन किया था वो? इन्वेस्टोपीडिया, ओके सर। जो फाइनेंस के लिए बेस्ड है। पर्टिकुलर ट्रेडिंग के लिए आप कोई भी वर्ड करोगे उसमें आपको मिल जाएगा। विकिपीडिया भी है बट वो थोड़ा आपको डिफिकल्ट रहेगा समझने के लिए। यूट्यूब भी कर सकते हो, अब तो यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं। रियली लोग बहुत मेहनत करते हैं यूट्यूब पे जो वीडियो बनाते हैं। सो उसको भी वैल्यू करो। मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मैं कोई इधर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट यस लोग करते हैं मेहनत और डेडिकेटेड करते हैं, गो थ्रू दैट, बहुत मेहनत करते हैं लोग, तो उस पे आपको अच्छी चीजें मिल जाएगी। कौन से टाइप के पार्टिसिपेट्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं? मार्केट में यस सर, डेरिवेटिव मार्केट में। डेरिवेटिव्स में स्पेकुलेटर्स भी होते हैं, हेजर्स भी होते हैं और आर्बिट्रेजर्स भी होते हैं। स्पेकुलेटर कौन होता है? फॉर एग्जांपल कि किसी को लग रहा है कि मार्केट मुझे 10,000 लग रही है, तो वो क्या करेगा, 11,000 की पुट बाय कर लेगा। सो व्हाट ही डिड कि उसको लग रहा है कि 10,000 आएगा, सो वो क्या करेगा, 11,000 का पुट ऑप्शन बाय कर लेगा। तो वो बेसिकली क्या हुआ, स्पेकुलेशन हो गया, क्योंकि उसको लग रहा है ऐसा, वो जाएगा श्योर नहीं है ना, तो उसने क्या किया, 11,000 का पुट ऑप्शन बाय कर लिया। अब दूसरा जो हेजर्स होता है, हेजर्स कौन होता है, लेट्स से कि मेरे पास इक्विटी का पोर्टफोलियो 100 सीआर का, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो डाउन ना जाए, उसके लिए मुझे क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, 11,000 का है मेरे पास टोटल इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल निफ्टी के 50 स्टॉक्स मेरे एज अ पोर्टफोलियो में है, तो मैं क्या करूंगा, 11,000 का पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा। तो नीचे जाएगा तो मुझे पुट ऑप्शन फायदा करवाएगा, और ऊपर जाएगा तो मेरा इक्विटी तो ओवरऑल मुझे प्रॉफिट ही करवाएगा। तो एक ये होता है हेजर्स होता है, उसका इंटेंशन मार्केट में से पैसे कमाना नहीं होता, उनका इंटेंशन बेसिकली ये होता है कि उनका जो रिस्क है उसको प्रोटेक्ट करना होता है, कि मार्केट में अगर कोई भी अनसर्टेनिटी आए या डाउनफॉल जो भी आए तो उसको वो लोग क्या प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड काइंड ऑफ होते हैं आर्बिट्रेजर, जो हम होते हैं। हम क्या करते हैं इस मार्केट में, जैसे स्पेक्युलेटर भी होता है, हेजर्स होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कहीं ना कहीं हमें मिसप्राइसिंग, हम वर्ड यूज करते हैं मिसप्राइसिंग, इसलिए बोल रहे कि इसमें हमें कहीं ना कहीं गैप मिल जाता है, कि कहीं कोई ऑप्शन है वो अंडर वैल्यूड अवेलेबल है और कोई ऑप्शन है जो ओवर वैल्यूड अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, अंडर वैल्यूड को बाय कर देते हैं और ओवर वैल्यूड को सेल कर देते हैं। तो उसमें से हमें क्या है, कहीं ना कहीं गैप मिल जाता है, बट बेसिकली हम स्ट्रेटेजी के थ्रू ही जाते हैं और वी हैव अ सॉफ्टवेयर फॉर दैट, राइट। सो हमारा सॉफ्टवेयर भी अलग है जो इन हाउस है कंपनी का, और यहाँ मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ओके सर, और सर मार्जिन में करना हो तो? सॉरी, मार्जिन में करना हो तो? मार्जिन में करना हो मीन्स? सर मार्जिन में भी तो कर सकते हैं, मतलब डेरिवेटिव्स का। थोड़ा एक्सप्लेन करो तो थोड़ा मुझे क्लैरिटी मिले ऐसे। जैसे कि सर ब्रोकर के थ्रू हम मार्जिन में भी तो बाय कर सकते हैं डेरिवेटिव मार्केट में। ब्रोकर के थ्रू मार्जिन में बाय, वो रिटेल, सर इंट्राडे का रिलेटेड बोल रहा है। हाँ वो रिटेलिंग का हो गया, I स्पेक्युलेटिव think पार्ट हो गया। Nana, Meera is asking about futures, I think, because future you can trade with the help of margins. So by paying your span margin or the mark to margin, I think Meera is Yes, talking yes. about that. है ना Meera? ओके, Okay. फॉर एग्जांपल आपके पास इक्विटी का पोर्टफोलियो है, ठीक है, और आप ये चाहते हैं कि उसको प्लेस करके मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग कर लूं, राइट। बट उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत होनी जरूरी है, क्योंकि आप इक्विटी में कर रहे हो और उसके बाद आपको ये ना हो जाए कि आपको इक्विटी में भी लॉस हो जाए और आप जो डेरिवेटिव्स करे उसमें भी लॉस हो जाए। तो उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बट होता है, मार्जिन भी होता है लोगों के पास। अगर मेरे पास 100 करोड़ का फंड है, यानी 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है, तो मुझे उसके सामने ब्रोकर नॉर्मली क्या देता है, मार्जिन मनी देता है। तो मार्जिन मनी में मैं वो यूटिलाइज कर सकता हूँ, बट उसके लिए आपको डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि
इजी नहीं है, इट रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ नॉलेज एंड एफर्ट्स, क्योंकि ये कैसा है कि ये ट्रायल एंड एरर नहीं है, इसमें पैसे एक्चुअली में नंबर्स में जाते हैं, और नंबर्स में जाते हैं तो इट कैन बी गो बियॉन्ड दैट। व्हाट यू थिंक? क्योंकि रीजन क्या है कि डेरिवेटिव्स इज लाइक डबल, आपको रिस्क भी इतना ही है और रिटर्न भी इतना ही है। तो आप ये सोचोगे कि मैं ऑप्शन सेल करके पैसे कमा लूं, तो उतना डबल स्पीड से आपका रिस्क हो जाएगा। तो आपको वो खास ध्यान रखना है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए डेरिवेटिव्स में। मैं तो पर्सनली यहाँ प्रीफर ही नहीं करूंगा कि आपको करना चाहिए, बिकॉज आई डोंट हैव एनी डीमैट अकाउंट, और मैं करता भी नहीं, किसी को प्रीफर भी नहीं करता, इवन फैमिली में नहीं करता। इट रिक्वायर्स लाइक प्रोफेशनल एक्सपर्ट चाहिए कि उसके लिए वो चीज मैनेज कर सके। सो मार्जिन मनी होता है, लोग करते हैं, और मेरे हिसाब से दे आर लूजिंग, मोस्टली 99% लोग लूज करते हैं, 1% ही अर्न करते हैं इन दैट सिनेरियो। Is there clear or anything you want to ask? Okay, Kuch there और? is a No, sure, sure. okay. There is a question from Kajal. She wants to ask, what is the growth aspect in this profile? Yes, nice question. Growth aspect, yes. तो अभी ग्रोथ किसको बोलते हैं, दैट इज द कंसर्न। पहले तो मुझे ये डाउट होता है, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ व्हाट, लाइक अब मोस्टली लोगों के लिए ग्रोथ की डेफिनेशन ये है कि अभी मेरे पास 2 लाख के पैकेज है, तो 3-4 साल के बाद मेरा क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो मैं एकदम फ्रैंकली आपको बताऊंगा कि ग्रोथ क्या होता है। मेरी अपनी कंपनी मनसुख में कैसा है, मैं 5 साल के लोगों का एक्सपीरियंस बता दूं। 5 साल जो लोग मनसुख में हैं उनका क्या ग्रोथ है वो मैं आपको बता सकता हूँ, प्रैक्टिकली बताऊंगा। कि हमारे पास ऐसे भी कैंडिडेट्स है कि जिनको हमने फर्स्ट ईयर में 2 लाख में लिया था, फर्स्ट ईयर के जो पैकेज होता है उसमें 2 लाख होता है, अभी वो 5 इयर्स के बाद उनकी इनकम है वो 15-20 लाख पे है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी है जिनका हमने 2 लाख का लिया था, वो अभी भी 3 लाख में काम कर, राइट। सो ये है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है कि आप कितना अर्न कर सकते हो, ठीक। तो 5 साल के बाद मैंने देखा हुआ है कि अभी हम रिसेंटली देखो तो बहुत लोगों की इनकम 15-20 लाख के आसपास है, पर्टिकुलर इन दिस ईयर। सो ग्रोथ ये है कि मैं ये बोलूं ऑन एन एवरेज अगर आपको कंपैरिजन दो, तो आपको ऑन एन एवरेज है ना 30% कंपाउंडिंग में ग्रोथ मिल जाती है। अगर ऑन एन एवरेज देखो, मैंने लेट्स से 100 एम्प्लॉयज ले लो, तो उनमें से 100 एम्प्लॉयज में से ऑन एन एवरेज निकालो तो 30% कंपाउंडिंग ग्रोथ हुई है कंपनी। और पैकेज के टर्म में मैंने आपको बता दिया कि इनकी 15 to 20 लाख की भी इनकम है, और इनके पैकेज भी अच्छे हैं, विच इज आई सपोज नॉट टू डिस्क्लोज हियर, बट यस मैं यहाँ आपको एवरेजिंग बता सकता हूँ। Okay, any more questions? Any more questions, students? So Mukesh, I have a question. Yes, ma'am. I just wanted to ask that there is so much of analysis when it comes to cash markets. You have a lot of experts talking about the present, past, and the future of the cash markets. There is a lot of information available as far as the cash markets are concerned कि क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा. A lot of data is available. But when it comes to derivative markets, there are very few experts who can give you genuine data as to what is the present scenario of the futures and options market, how it is going to be in the future. So what is the reason for the same? And can you give us a brief overview of the impact of COVID on the F&O segment? And what is the future outlook on the same? Yes, ma'am, sure. सो बेसिकली जो आपने बताया कि जो पहले क्वेश्चन यही था ना आपका कि जो कैश का जो डेटा होता है, तो F&O में जो डेटा होता है उसका सिनेरियो कैसा एनालिसिस करना चाहिए कि क्या हो सकता है, ये हो सकता है। यस Yes. तो उसके लिए क्या होता है पर्टिकुलर लाइक FO मार्केट में, ऑप्शन में बेसिकली आप ओपन इंटरेस्ट के थ्रू आपको पता चल सकता है कि मार्केट में लोगों का बिहेवियर क्या है, बिकॉज फिनेंस इज लाइक बिहेवियर, मोर अबाउट फिनेंस इज लाइक बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसा है वही मायने रखेगा कि आपका बिहेवियर पार्ट कैसा है। तो अभी आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ लोगों का बिहेवियर क्या है वो आपको जानना है। तो आप कैसे जा सकते हो, ओपन इंटरेस्ट के थ्रू जान सकते हो।
ओपन इंटरेस्ट के थ्रू पता चल सकता है कि लोगों की मैक्सिमम पोजीशन कहाँ खड़ी है, लोग कहाँ स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, ये सब डेटा आपको एक्सेल से मिल जाता है। ये डेटा ऐसा नहीं है कि भाई ये हमें मिलता है, इट इज अवेलेबल टू यूनिवर्सल, ये सबको मिल जाता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि मार्केट में रिस्क कितना है, ये आपको डिफाइन करना है। तो यू कैन डेफिनेटली, आपको पता होगा कि इंडिया विक्स यानी कि एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स होता है। तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स ये होता है कि आपका रिस्क कितना है, वो आपको पता करना है कि अभी के मार्केट के हिसाब से देखें तो अनसर्टेनिटी कितनी है। तो वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू, लाइक हम इसको स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ते थे, स्टैंडर्ड डिवीजन होता है कि अगर उसको हमें डिफाइन करना है तो स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू वॉलेटिलिटी। तो वॉलेटिलिटी ये होता है कि आपका जो मीन्स है वो कितना अप एंड डाउन हो रहा है मार्केट में। तो वो मीन से जितना ज्यादा अप एंड डाउन होगा ना, उतना आपका वॉलेटिलिटी पार्ट बढ़ जाएगा। सो ये जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स से आपको पता चलेगा कि मार्केट में अभी वॉलेटाइल मार्केट है, स्टेबल मार्केट है, या बुल मार्केट है, बियर मार्केट है। आपको मोस्टली पता चले वॉलेटिलिटी मार्केट से कि मार्केट में रिस्क कितना है, राइट। सो ये एक है ओपन इंटरेस्ट है, वॉलेटिलिटी है, और फ्यूचर में भी ओपन इंटरेस्ट ही होता है। सो बेसिकली आपको ये चीज इधर से पता चल रहा है कि मार्केट में क्या चीजें कैसे चल रही है। तो ये तीन चीज मेरे ध्यान में अभी आ रही है, और भी हो सकती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं हो सकती, बट मेरे ध्यान में अभी ये तीन चीज ही है। ओपन इंटरेस्ट से पता चल जाएगा, वॉलेटिलिटी से पता चल जाएगा, और फ्यूचर में भी आपको ओपन इंटरेस्ट मिल जाता है तो उससे भी पता चल जाता है। अभी एक और आया है कि एफ एंड ऑफ बैन आता है कि ये बैन में है कि नहीं है, तो बैन से भी पता चल जाएगा। बट बैन के भी अलग रूल्स होते हैं। लाइक बैन क्या होता है कि उसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ऑप्शन अवेलेबल होने के बाद भी आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, कि उसमें एक लेवल के ऊपर की पोजीशन हो जाती है तो उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते। वो बहुत हाई वॉलेटाइल स्टॉक्स होते हैं, उसमें पॉसिबल होता है ये सब, कि इसमें ये लोग एक्सचेंज क्या है, वॉलेटिलिटी कंट्रोल करने के लिए ये लोग बैन ऑप्शन डाल देते हैं। सो बेसिकली ये है। तो डेरिवेटिव्स में बेसिकली देखा जाए तो 3 लोग काम करते हैं। इसमें इन्वेस्टर नहीं होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टर नहीं होता है इसमें। इसमें जो होता है वो हेजर्स होता है, स्पेकुलेटर्स होता है, और आर्बिट्रेजर्स होता है। इसमें इन्वेस्टर नहीं होता है। इन्वेस्टर होता है तो अपनी पोजीशन को हेज करने के लिए करता है, या फिर कोई उसको आर्बिट्रेज जैसा लग रहा है, बट उसके लिए बहुत हाई फ्रीक्वेंसी उसको सॉफ्टवेयर और वो सब चाहिए। सो वो रिटेलिंग के लिए पॉसिबल नहीं है, उसके लिए बहुत हाई कॉस्ट होती है, तो वो रिटेलर के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इन्वेस्टर नहीं होता। बेसिकली 3 प्लेयर्स आर बेसिकली होते हैं, स्पेकुलेटर, हेजर्स एंड आर्बिट्रेजर्स होते हैं। ओके, और सेकंड क्वेश्चन क्या था मैम, एक्चुअली मैं भूल गया। So the second question I had asked that, is there a relationship between the derivative markets and the cash markets? So can we predict the cash markets by looking at the derivative markets? No, rare possible, because actually what is derivatives? Derivatives is derived from underlying. तो underlying cash market है। For example Reliance है, तो Reliance है, वो कैश में जो अवेलेबल है वो मेन अंडरलाइन है उसके लिए, ठीक है। तो अभी लाइक ऑप्शन की जो वैल्यू डिराइव होती है वो रिलायंस से डिराइव होती है, रिलायंस कैश की ऑप्शन से नहीं होती है। सो बेसिकली क्या होता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि ऑप्शन से हम कैश का कर सकते। लोग ट्राई करते, सब कुछ करते, बट प्रोबेबिलिटी अब देखोगे तो वो 50-50 ही होगी। सो 50-50 तो हर जगह प्रोबेबिलिटी होती है। तो आई डोंट थिंक ये कोई सक्सेस रेशियो। प्रोबेबिलिटी में इसको मानूंगा कि अगर 10 में से 8 इंस्टेंस अगर सक्सेस होते तो मैं उसको मानूंगा। बट ये लोग बोलते हैं, लोग रिसर्च करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बट मेरा ये है कि 50-50 है। इसमें ये नहीं है कि भी लोग डेरिवेटिव के हिसाब से लोग कैश का निकाल दे, आई थिंक रेयर होता है। लोग चार्ट भी प्रीफर करते हैं तो कैश के देखते हैं, फ्यूचर्स के नहीं देखते। रीजन क्या, उधर प्लेयर कम है कंपेयर टू कैश में। कैश हैज अ ह्यूज वॉल्यूम कंपेयर टू ऑप्शन, so that is not possible. So what you mentioned, high frequency trading and algorithmic trading or quantitative trading, is it there prevalent in Mansukh? Do you guys Yes, do that? yes, we are doing a high HFT algorithm and quantitative. Yes, Okay. possible. So But what is it the requires volume of this kind of trading compared to the normal trades? What is the volume, if I actually approximate volume? in a market I think HFT player are doing a lots of volume. Okay. बिकॉज हम जो ट्रेड लेते हैं, मैं बेसिकली ट्रेड लेता हूँ तो दिन के मेरे 2000-3000 लॉट्स वॉल्यूम होता है। सो आर्बिट्रेजर ही है जो मेन मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। अगर आर्बिट्रेजर ना हो तो यू विल फाइंड कि बहुत लिक्विडिटी मार्केट में आ जाएगी। लाइक पर्टिकुलर जो भी फार मंथ के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें
नियर मंथ यू माइट फाइंड बट उसमें लिक्विडिटी कम हो जाएगी, तो वी आर आर्बिट्रेजर प्रोवाइडिंग अ लिक्विडिटी टू मार्केट। अब फॉर एग्जांपल बीएससी है, तो बीएससी को एक्चुअली डेरिवेटिव सेगमेंट्स में एंट्री चाहिए, बट एक्चुअली क्या हो रहा है कि उधर लिक्विडिटी ही नहीं है। सो वी आर ऑल्सो डूइंग अ मार्केट मेकिंग इन बीएससी इन अ गिफ्ट सिटी, वी हैव ऑफिस इन गिफ्ट सिटी। सो हम गिफ्ट सिटी में उसका मार्केट मेकिंग भी होता है, तो उसमें हम लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, बट लोग प्लेयर ही नहीं आते तो कुछ नहीं कर सकते, बट वी आर प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द मार्केट। सो एचएफटी लाइक एचएफटी प्लेयर है, वही लोग मार्केट में लाइक क्या करते हैं, वो लोग खड़े हो जाते हैं दोनों साइड में। पहले जॉबर्स करते थे, बट जॉबर्स की अभी क्या है, मशीन ने इतनी स्पीड ले ली तो जॉबर्स लाइक पीछे रह गए। अभी जो भी है वो मशीन, विदाउट मशीन नॉट पॉसिबल आई थिंक, क्योंकि जिस स्पीड से मार्केट हिलता है अभी, तो जितनी अनसर्टेनिटी है, पॉसिबल नहीं है इंडिविजुअल के लिए। एचएफटी प्लेयर्स आर डूइंग दैट, कि वही कर सकता है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड होते हैं, उसकी कॉस्ट भी बहुत होती है। Okay, Mukesh, there is a question. One Yes, ma'am. yeah, Kiran ma'am. Acha, okay, thank you, Kiran ma'am. Ma'am, go ahead. There is a question from the student. We can ask later. Okay, Nana, I have my question. Mukesh, one thing you just mentioned about the high frequency trades, okay, and Mansukh is very much into that. But the thing is that when this high frequency or the quant trades are there in the capital market, so actually in nanoseconds now the trades are happening. So don't you think कि ये जो नैनो सेकंड के जो हमारे ट्रेड्स हो रहे हैं in our capital market, so it is also reducing the spread among the trades? So you are into the arbitrage, so it is affecting your arbitrage strategies? Yes, जैसे मैंने इनिशियली बताया कि जैसे यस मैम, या मुकेश को है। यस मैम, जैसे मैंने फर्स्ट में बताया था कि आर्बिट्रेज क्या होता है, जैसे एनएससी में खरीद लो, बीएससी में बेच लो। तो अभी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर ने क्या कर दिया, इसका जो गैप पहले मिल रहा था वो अभी मिल ही नहीं रहा, तो इसमें अभी अपॉर्चुनिटी नहीं। तो वो क्या इजी सेगमेंट था अभी, वही इसीलिए क्या होता है कि धीरे धीरे लोग क्या डेरिवेटिव्स में कर रहे हैं। तो हम बेसिकली किस पे करते हैं, आईवी पे करते हैं, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी पे करते हैं। जैसे मैंने आपको वोलेटिलिटी का कंसेप्ट समझाया कि वो बेसिकली स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। तो आईवी हर एक स्ट्राइक की भी होती है। जैसे अगर मैं बोलूं 11,000 पुट ऑप्शन होते हैं, तो 11,100 के भी होते हैं, 11,200 के भी होते हैं, और ऐसे हर एक एक्सपायरी की आईवीज होती है। तो आईवी से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा अंडर वैल्यूड और कौन सा ओवर वैल्यूड है। तो बेस्ड ऑन दैट हम उस पर डिफाइन कर सकते हैं। यस, ये क्या होता है कि अभी आर्बिट्रेज होती है, बट जब मार्केट में यूनिवर्सल सब लोग करने आ जाएंगे तो वो अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी। देन वी आर मूविंग टू अनदर, लाइक वी आर डूइंग इन अनदर सेगमेंट आल्सो, व्हिच आई नॉट सपोज टू डिस्क्लोज हियर, बट हाँ हम लोग करते हैं, उसमें भी करते हैं कि जहां भी लिक्विड मार्केट होता है, सेमी लिक्विड, वी प्रेफरली सेमी लिक्विड। जैसे लिक्विड देखा जाए तो बीएससी मार्केट है, बट हम सेमी लिक्विड मार्केट में करते हैं। जैसे स्टॉक्स में आई थिंक इतनी लिक्विडिटी नहीं है, अपार्ट फ्रॉम फ्यू स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स एफ&ओ में हैं, बट उतनी लिक्विडिटी नहीं है। तो कुछ स्टॉक्स है जो सेमी लिक्विड है, तो वी आर ट्राइंग टू गेट फ्रॉम दैट सेगमेंट आल्सो। और स्टॉक्स में तो बहुत है, 200 स्टॉक्स ऑलमोस्ट इन फ्यूचर। या थैंक यू मुकेश। यस मुकेश, एज अ डेरिवेटिव ट्रेडर आपका सक्सेस रेशियो कितना होता है? सर सिंस ज्वाइनिंग हमारा कैसे होता है, परफॉर्मेंस हर मंथ होता है हमारा मोस्टली। हमारे हर मंथ हमारी शीट होती है, रेवेन्यू होता है कि हर मंथ हाउ मच आई अर्नड फ्रॉम दैट, जो भी फंड होता है उसमें हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी के लिए। तो मैं एकदम जेन्युइनली बताऊंगा कि मैं लास्ट ऑलमोस्ट 10 साल कंप्लीट होने आएंगे 2021 फेब में, मैंने 1-2 महीने छोड़ के कभी लॉस नहीं किया। रीजन ये है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि लॉस नहीं करते, रीजन कहीं ना कहीं ये है, वी आर टू प्रोफेशनल अबाउट दैट पार्ट कि हमें कितना रिस्क लेना है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या है, हमें कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है। तो एकदम ऐसा होता है कि गो थ्रू होते है, एकदम ऐसा नहीं है कि भाई चलो अपने दिमाग में आया और आइडिया ले लिया, वो पॉसिबल नहीं है। हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। तो आप मानोगे तो मुझे ऑलमोस्ट 120 मंथ्स हो गए, बट उसमें से 2-3 महीने छोड़ के मुझे लॉस नहीं हुआ है। वो भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में हुआ होगा, वो भी मार्केट सडनली वन साइडेड मूव कर जाती है, कुछ हो जाता है तो ही हमें लॉस होता है, बट रेयर होता है। और मोस्टली हमने कोई एम्प्लॉय को निकाला भी नहीं है। पर्टिकुलर मेरी टीम की बात करूं तो मैंने कभी किसी को नहीं निकाला है। रीजन ये, वी आर गिविंग इट टू मच टाइम। हाँ, उनको नहीं करना, दैट इज सेकंड पार्ट, बट ऐसा नहीं है। सक्सेस रेशियो मोस्टली अगर मैं बोलूं तो 10 में से 8 इंस्टेंस हम प्रॉफिट करते हैं। अगर 10 बार ट्रेड लेते हैं तो 8 बार हम प्रॉफिट करते हैं, तो ऑन नेट हम गेन ही करते हैं हर मंथ। When you say hum, मतलब you are representing entire team or you individual?
यस, अगर मैं बात करूं तो मैं मेरी टीम की बात करूंगा ऐसा, बिकॉज आई एम द रिस्पॉन्सिबल कि मैं मेरी टीम को ग्रो करूं। हर किसी की टीम होती है, जैसे मेरे नीचे मेन 6 टीम है, उसके अंडर उन लोगों के पास अलग अलग टीम है। तो बेसिकली हम ऐसे 100 की टीम मैनेज कर रहे हैं कि मेरे नीचे 6 लोग हैं, तो 6 में से वो लोग अपनी अपनी टीम मैनेज करते हैं। तो बेसिकली हम उस हिसाब से डेवलप करते हैं ताकि हर कोई रिस्पॉन्सिबल हो, और ओवरऑल मेरा जो भी टीम का है वो मैं रिस्पॉन्सिबल होता हूँ। ये जो आपको ट्रेडिंग के लिए जो पैसा दे देते हैं वो मनसुख का प्रोप्राइटरी फंड है कि क्लाइंट्स का है? नहीं, प्रोप्राइटरी, क्लाइंट का हम नहीं कर सकते एक्चुअली। प्रोप्राइटरी फंड ये एक्चुअली, इसको प्रॉप डेस्क भी बोलते हैं। ओके, तो उनके तरफ से कोई गाइडलाइन मिलता है आपको, कितना रिस्क रिवार्ड का क्या सीन है, या ये आपको ट्रेनिंग में दिखाया जाता है कि क्या होता है? नहीं, बेसिकली हम ये सोचते हैं कि भाई आपको एक महीने में इतना ही रिस्क लेना चाहिए कि आपकी लास्ट 6 मंथ की जो एवरेज हो ना, उतना ही रिस्क लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ यू अर्न 6 लाख रुपीस पर मंथ, सो यू कैन टेक मैक्सिमम, आपके लेट्स से कि 6 महीने की एवरेज भी 6 लाख रुपए है, तो आप मैक्सिमम 6 लाख रुपए का रिस्क ले सकते हैं। उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेने देते, हम मना कर देते हैं उसको, बोलते हैं कि नहीं अभी तो कम कर, और जब तुझे सूटेबल हो तब धीरे धीरे हम ग्रो करते हैं। रीजन ये है कि वी आर नॉट हियर टू वन टाइम कि हमें एक बार कमा के बंद करना है। वी आर लाइक डे ट्रेडर, हमें डेली ट्रेडिंग करना होता है, डेली स्टॉक मार्केट इज अ पार्ट। सो हम ये मानते हैं कि हमें डेली ट्रेडिंग करना है, तो वन टाइम रिस्क ले लेंगे तो फिर लोगों का करियर भी होता है। तो वी ऑल्सो थिंक कि करियर के पर्सपेक्टिव से भी हम सोचते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, एक लिमिटेड रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि हमें आगे भी कमाना है ऐसा। सो कभी होता है, कभी अप्स एंड डाउन होते आते रहते हैं, बिकॉज स्टॉक मार्केट है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई हर किसी का सुनेंगे। लाइक हम भी जो भी है, तो हमें भी मार्केट के हिसाब से बिहेव करना होता है। तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड जो होता है वो हम ओवरऑल वार भी कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू एट रिस्क जो होता है ना, वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो उससे हम डिफाइन करते हैं कि एक बंदी का पर्टिकुलर एट ए टाइम पोजीशन उसने लिए तो उसका कितना रिस्क होता है। अगर एक लिमिट से होता है तो उसको हम बोलते हैं कि नहीं भाई, तू या तो हेज कर या पोजीशन रिड्यूस कर। सो वो हमें पहले से पता चलता है। एंट्री के बाद कितने टाइम के बाद आप उसको ट्रेड करने के लिए देते हो? ट्रेनिंग, वो कितने ट्रेनिंग के बाद? पर्टिकुलर एम्प्लॉय के नए लिए बोल बंदे रहे के हो? लिए, हाँ नए ओके बंदे ओके, के लिए। नहीं हम ट्रेनिंग उसको फर्स्ट डे से अलाउ करते हैं। हाँ, but we are giving a limited fund, like we are providing 10 lakh rupees fund, that kind of fund initially, 10-20 lakhs, but not much that। और M2M wise भी उनकी लिमिट हम फिक्स कर लेते हैं, like initially they can take 20-30,000 M2M, not that much ऐसा। तो एक लिमिटेड रिस्क पे हम करवाते हैं, तो ही पॉसिबल है। थियोरेटिकल पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली गेन करेगा तो ही मतलब है ऐसा। और नए बंदे को इसमें हाथ आने में एवरेज, कोई जल्दी पकड़ लेता होगा, कोई स्लो पकड़ता होगा, लेकिन जनरली 2-3 महीने में उसको सारी स्ट्रेटेजीज या पोजीशंस समझ में आती है? नहीं, हम बेसिकली क्या करते हैं, एक बंदे को एक स्ट्रेटेजी सिखाते हैं। रिजल्ट क्या, फोकस जरूरी है, ट्रेडिंग में फोकस बहुत जरूरी है। तो हम एक बंदे को एक ही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाते हैं, और उस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे उसको ग्रो होना होता है। यस, आफ्टर सर्टेन पीरियड उसको लग रहा है कि मुझे और स्ट्रेटेजी में काम करना है, तो ही कैन डू ऑन ओन, तो वो अपने हिसाब से कर सकता है। उसको हम एम्प्लॉय भी दे सकते हैं, टीम भी दे सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से करना हो तो कर सकता है। तो कोई R&D करना है, ये करना है, तो हम उसको एक पर्टिकुलर फंड दे देंगे, भाई उसको करना है तो ये कर सकता है। बट बेसिकली हम इनिशियली कोई ट्रेडर होता है उसको एक स्ट्रेटेजी पे काम करवाते हैं, तो ऑलमोस्ट 1 ईयर हम एक ही स्ट्रेटेजी पे काम करवाएंगे, क्योंकि उसका भी करियर होता है। हम उसको बार बार ये स्ट्रेटेजी करे, वो स्ट्रेटेजी करे, और फिर अल्टीमेटली पता चले कि उसकी ग्रोथ ही ना हो, तो वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और अल्टीमेटली कंपनी के लिए भी कोई वर्थ नहीं होती। सो बेसिकली हम एक स्ट्रेटेजी सिखाते हैं, उसके लिए एक टीएल अलोकेटेड होता है, वो टीएल उसको गाइड करता है रेगुलरली, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पर्टिकुलर। और वैसे ही चलता था। 1 साल के बाद अगर उसकी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, वी आर गिविंग देम टीम, सो एंड सो। हमारा ऐसा चलता रहता है कि बेसिकली वो आगे ग्रो होता रहे, और टीम वाइज हमारा स्ट्रक्चर है बेसिकली कि टीम वाइज ही ग्रो हो सकते हैं ऐसा। व्हाट आर द प्लान्स फॉर गिफ्ट सिटी? आपने जैसे बताया एक नया यूनिट वहां पर बनाया है, तो आर यू हायरिंग फॉर दैट, और जो हायरिंग अभी चल रही है वो आपके एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए है? अभी तो एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए, और गिफ्ट सिटी में ऐसा देखा जाए तो ऐसा कोई बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा है। लाइक इट टेक्स टाइम, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हमें लग रहा है कि इतना टाइम लगेगा। एक्चुअली मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं होगा तो हम क्या कर लेंगे। सो पहले तो हमें मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा, देन वी कैन एंटर। सो एज ऑफ नाउ तो इतना नहीं हमारा है, 1-2 लोग है, और इंटरनेशनल लेवल का काम करते हैं ये लोग, और मार्केट मेकिंग भी करते हैं, तो उसके लिए तो मशीन होते हैं मार्केट मेकिंग के लिए, तो उसके लिए इतनी जरूरत नहीं होती। बट बेसिकली हम अहमदाबाद के लिए कर रहे हैं, इधर सॉरी आप सिटी के लिए कर रहे हैं। आप डेरिवेटिव सिर्फ इक्विटी में करते हैं कि कमोडिटीज एंड इंटरेस्ट रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज में भी करते हैं? नहीं, बेसिकली हम इक्विटीज इंडेक्स में करते हैं, मेनली इंडेक्स और आर यू स्टॉक्स में प्लानिंग टू करते हैं। जंप आर यू प्लानिंग टू जंप इनटू अदर एरियाज?
वॉल्यूम नहीं मिल रहा है एक्चुअली, हमें जो चाहिए वो वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, लिक्विड बहुत है। फॉरेक्स में वो इंटरेस्ट रेट दोनों में नहीं मिल रहा है। फॉरेक्स में एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे आरबीआई के गाइडलाइंस होते हैं, सो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम कि हम इतनी पोजीशन नहीं बना सकते, ये नहीं बना सकते, तो उसमें लिमिटेशन बहुत है। लाइक करेंसी में भी ऐसा कुछ है कि लिमिटेशन है कि आरबीआई के हिसाब से बहुत रिस्ट्रिक्शन है। सो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स और स्टॉक्स में इतनी अपॉर्चुनिटी है, सो दिल्ली में करते होंगे फॉरेक्स में, बट दैट इज नॉट माय पार्ट, पर्टिकुलर अहमदाबाद में नहीं करते। कमोडिटीज में प्रेशियस मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड बिग सिल्वर मार्केट। अब ये गोल्ड एंड सिल्वर में आई थिंक 1 साल हो गए उनमें ऑप्शन लॉन्च हुआ, अभी जस्ट ऑप्शन लॉन्च हुए हैं, और उसमें भी वही है कि ऑप्शन आप देखोगे तो आपको उसमें लगेगा लिक्विडिटी ही नहीं है, बहुत ही लिक्विड है, और लाइक सिल्वर इज लाइक ह्यूज वॉलेटाइल, तो आपके पास लिक्विडिटी नहीं होगी तो आप फंस जाओगे ऐसे ट्रेड होने के बाद। अगर लॉस गया, अनफेवर गई, तो यू कांट कट योर पोजीशन, सो उस टाइम पे नहीं कर सकते सर। लास्ट 6 महीने में वीआई इंडेक्स ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नीचे बहुत हो गया, जो लास्ट 5 साल में नहीं हुआ था। उससे आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में क्या फर्क पड़ा? जितना आईवी हमारा बढ़ता उतना हमें ज्यादा बेनिफिट होता है। अच्छा। यानी कि जितना आईवी होगा तो लाइक हमारे लिए क्या होगा, ऑप्शन के प्रीमियम उतने ज्यादा हो जाएंगे, तो हमें उतनी अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाती है। तो हमारे लिए मेन बेनिफिट यही है कि जितनी आईवी ज्यादा उतना हमारे लिए काम ज्यादा होता है। सो पर्टिकुलर कोविड इज अ गुड पीरियड फॉर अस। ऑप्शंस में ये अभी बहुत देखा गया है, फार मंथ के ऑप्शन में बहुत ही ज्यादा मूवमेंट आ रही है, ओपन इंटरेस्ट बहुत ही ड्रास्टिक डाउन हो जाता है, ड्रास्टिक ऊपर जाता है। रीजन बीइंग कि कैश मार्केट में स्टॉक अगर 5 दिन में अगर बहुत कम गया है या बहुत ऊपर गया है, तो फार मंथ में ऑप्शन में आपका बहुत चेंज आता है। तो हाउ डू यू प्ले दैट? नॉट अ स्ट्रेटेजी बट ओवरऑल मैक्रो। बेसिकली हम स्ट्रेटेजी पे ही जाते हैं एक्चुअली, हमारा क्या फोकस्ड होता है। जैसे मैं आपको बताऊं ना, आप मुझे बताओगे ना कि टेक्निकल के, आप बोलोगे इनके 2 इंडिकेटर बताओ, मैं 9 साल से काम कर रहा हूँ, बट मुझे 2 इंडिकेटर भी नहीं पता। ठीक है, आरएसआई पता है थोड़ा बहुत, बट मैं टेक्निकल नहीं हूँ। हमारा फोकस्ड है ऐसा कि भाई हमें यही करना है। रीजन के स्टॉक मार्केट में मल्टीपल थिंग्स टू डू, बट प्रॉब्लम ये होता है कि फोकस लोगों का नहीं होता है। हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि आप एक ही चीज पे स्टिक रहो, एज ए कोई भी हमने देखा हुआ है कि आप कितना कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। स्टॉक मार्केट लाइक ऐसा है ना कि इटसेल्फ लाइक बहुत सारी स्ट्रेटेजीज कर सकते हो, इक्विटी कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो बेसिकली हम तो क्या करते हैं, फोकस्ड एरिया, और हमारा जो ग्रिप है पर्टिकुलर, वो हमारी एक ही स्ट्रेटेजी पे ग्रिप है। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो हम मोस्टली कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटेजीज में करते हैं, तो वो हमारा एक फोकस्ड एरिया है। तो हमें लगता है कि उसकी हर चीज, छोटी बुरी जो भी चीज है ना, तो हमें पता होता है। तो हम बोल सकते हैं कि कैलेंडर में वी आर एक्सपर्टाइज, बट आप बोलो कि स्टॉक मार्केट में, तो मैं बोलूंगा नहीं, आई एम नॉट एक्सपर्ट टू से एनीथिंग अबाउट अपार्ट फ्रॉम लाइक कैलेंडर। फोकस्ड मेन जरूरी है हमारे लिए। हम एम्प्लॉय को भी यही बोलते हैं, हमारी टीम में भी यही बोलते हैं कि फोकस्ड होना जरूरी है। और कैलेंडर इटसेल्फ लाइक उसमें भी बहुत बड़ा है। लाइक आपने जैसे बोला फार मंथ में वॉल्यूम होता है, ये होता है, तो हमें काफी ऐसे वॉल्यूम मिल जाते हैं फार मंथ के ऑप्शंस में। जैसे वीकली आने के बाद हमारा काम काफी इंप्रूव हुआ है। तो यस, दैट इज लाइक हम मोस्टली यही फोकस्ड पे काम करते हैं। पर्सनल पूछूं तो व्हाट्स योर प्लान? यू वांट टू स्टे और मूव और स्टार्ट योर ओन, और व्हाट यू प्लानिंग? अभी तो मनसुख में ही गुड गुड गुड। ऐसा यस होता ही मैम, नहीं माय है, ऐसा होता नहीं है। रीजन ये है कि हमारी इंडस्ट्रीज में क्या है, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ कि मूव ऑन करना इतना इजी भी नहीं होता है। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ रीजन क्यों है। बिकॉज आई हैव 100, मेरी पास 100 लोगों की टीम है, जिसका रेवेन्यू भी मुझे एक पोर्शन कुछ मिलता है, लाइक इंसेंटिव के टर्म में कुछ मिलता है। सो इफ आई लेफ्ट दैट जॉब, तो मुझे पूरी टीम छोड़नी पड़ेगी, और दैट रेवेन्यू इज मच बिगर देन माय पर्टिकुलर पैकेज इन टर्म्स ऑफ, सो आई कांट डू दैट। सो बेसिकली सब किसी के लिए ऐसा ही होता है, जिसकी भी टीम होती है, एक बार आपने मनसुख में ग्रो कर लिया, इट इज डिफिकल्ट टू एग्जिट, बिकॉज यू आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, उस लेवल की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, कंपेरेबल ही नहीं होगा। आप कहीं जाओगे तो वो देके भी क्या देगा ऐसा, सो दैट इज नॉट अ पॉसिबल। मनसुख की तरह ऐसे प्रॉप फंड वाले कितने होंगे अहमदाबाद में? अहमदाबाद कोई आइडिया नहीं है, ऐसे लोग करते हैं, बट आई थिंक ऐसे टीम वाइज बहुत कम करते हैं। ऐसा लोग करते हैं, बट एज ए एक्सपीरियंस दे रिक्रूट। वो लोग फ्रेशर्स को जनरली रिक्रूट नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, और वी हैव अ जितना यूनिक फंड स्ट्रेंथ। जितना फंड आप लोगों के पास है, मेरे ख्याल से उतना फंड तो कोई, आई डाउट कि ऐसे कोई प्रोफेशनली कोई काम नहीं नहीं करवाता होगा। होगा, दिस इज होगा? नथिंग लाइक, दिस इज नथिंग, वी हैव नथिंग लाइक। बहुत सारी होती है कंपनीज, ऐसा नहीं है, बहुत लोग करते हैं, बहुत बड़े लेवल पे होता है, बट हर किसी की अपनी अपनी यूनिक होती है। मैं ऐसा बोलूंगा कि कोई इंडिविजुअल लेवल पे समझो मैं हूँ, तो इंडिविजुअल 5 to 6 ईयर मार्जिन डाल दो,
बट कोई ऐसी कंपनी होती है जो इंडिविजुअल 20-25 शेयर मार्जिन डाल दे। तो सबकी अपनी अपनी फिलोसॉफी होती है ट्रेडिंग में कैसे करना है। किसी को लगता है कि ये सब क्या जुलझल करना, कि इतनी बड़ी टीम लेने की, ये करने का, इससे अच्छा है कि बंदा फंड डाल दे। और हम चाहते हैं कि वी थिंक कि हमें डाइवर्सिफाई, भले भले कम रेवेन्यू मिले बट हम एज अ करियर ग्रो कर सके। सो हमारी फिलोसॉफी ये कि हमें करियर वाइज ग्रो करना है ऐसा। तो होता है, ऐसा मनसुख के नहीं कि नहीं प्रोपर होता। मनसुख के जो प्रमोटर्स है उनका क्या फ्यूचर प्लान है? इसी एरिया में आगे बढ़ना है और दे वांट टू अलॉट मोर फंड्स इनटू दिस, और हाउ दे गोइंग टू गो अबाउट? अब एक्चुअली बेसिकली तो उनका यही है, डेरिवेटिव्स में है मोस्टली, और टेक्नोलॉजी पे बहुत बड़ा रोल है, तो दे आर फोकसिंग ऑन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी इसमें और भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उसमें ये लोग टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं। बेसिकली टेक्नोलॉजी पोर्शन उनका है, और बाकी ग्रोथ का जो एज अ बिजनेस ग्रोथ है वो हमारा फोकस है। लाइक अहमदाबाद में मैं हूँ, हमारे जो सीनियर है शिरीष शाह, तो उनका फोकस होता है कि हम बिजनेस को कैसे ग्रो कर सके, और हम अहमदाबाद को एक अलग ही लेके चल रहे हैं एज ऑफ नाउ, और वी आर क्वाइट सक्सेसफुल इन दैट टर्म्स। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू वो लोग करते रहते हैं इन्वॉल्व। आई एम नॉट राइट पर्सन के टेक्नोलॉजी के पार्ट में क्या होता है, मेरा इतना नॉलेज नहीं है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ लाइक बहुत टेक्निकल पर्सन चाहिए जो ये कर सके इसके। That's it, Mukesh. Thank you. Thank you very much for answering those questions. Because थैंक यू। yes, Kiran ma'am, over to you. Okay, so I have to give a vote of thanks. So I'm finding it difficult because there is so much to say, so much to be grateful for. So first of all, Mukesh, on behalf of LJMB, the entire LJ family, I want to thank you. I mean, you started off as making us feel comfortable by saying that you are LJ alumni, then you are from Mansur. So that Yes. was really a good thing to start off. So we are grateful for that, for giving us such an importance. Secondly, you focused on a lot of points, as in how education, being practical is more important, being smart is more important than having education. Being responsible on the job, taking up responsibility for your profile. Um, how there are multiple opportunities for people even in this COVID time. So all we have to do is be positive and see that how COVID has actually helped some people in their jobs in terms of be getting more access to opportunities. So yes, you should focus more on positives, and with dedication you should grab all the opportunities that come your way, no matter whatever the people say. Then whatever field you are interested in, you should do a thorough research on that. Give more importance on ethics and improving yourself. Ultimately, if you improve yourself, you will add more value to the organization. You also gave us a unique perspective on bonds. So why bonds can actually be good for you. Uh, One more thing I liked about your talk was that how survival and growth in an organization should be given a priority over package. So a lot of youngsters these days, we have seen that they give more importance to package, and then they do not see that how the company will help them in their growth, how the company will has a long term vision rather than they focus on the short term thing. So that is a new thing a new perspective that you have given us. You have also opened up about your profile at Mansuk and how it focuses on the hardcore aspects of finance, which in fact is good for the students who want to develop in the core area of finance. Another thing I liked about your talk was that you focused a lot upon positive attitude rather than knowledge. So there are some of the people who are not blessed with a lot of intellectual capability. So it's not necessary they will not be successful in life, because ultimately what wins is the positive attitude. So that is what I really liked. You also gave them tips about how they can approach this market with the help of NICM derivative exam, which I think is very important if you are interested in this segment. You also talked about how you can excel or how you can promote in the organization based on your capability alone.
And the last point which I really liked about is in the whether it is the capital markets or the derivative markets, you should stick to one strategy. So it should not be like like whatever is others are doing. Generally, this is the behavior we see in the market. If people are going for IPO, everybody will go for IPO. If people are doing day trading, everybody will do. So what you focus was that you stick to one strategy and you specialize in that, and ultimately you can benefit from that particular strategy. So that is the point which I really liked as far as the market, the strategy in the market was concerned. I hope I summarized everything. So thank you, Mukesh, for your valuable time. I'm sure our students benefited a lot. I benefited a lot. I think all of us, it was great and an enriching experience interacting with you. And it is also a proud moment for us that our own student has reached to such heights in this particular field, has developed this niche as far as the this segment is concerned. And definitely we would like to have you on our campus. So once this situation is over, please bless us with your expertise in the classroom session. So thank you, Mukesh, from all of us. I think that's all for me. So Mukesh, you want to say anything? Did I Thanks. miss out anything? No, ma'am. Thanks a lot. और I'm actually part of LJ family. ऐसा नहीं है because सिद्धार्थ सर से जब भी हमारी बात होती है तो हम यही बोलते हैं कि LJ is like हमारा होम है, कि हमें जब भी कैंडिडेट चाहिए तो we call सिद्धार्थ सर. और सिद्धार्थ सर को कभी भी लगता है कि भाई कैंडिडेट है, किसी को जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली वो भी ओपन है कि कॉल कर लेते हैं. ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्म कर दे कि भाई मुकेश की ये कैंडिडेट को रिक्वायरमेंट है, बहुत है. और मुझे भी जब भी होता है तो मैं सिद्धार्थ सर, तो इट इज लाइक फैमिली है, नथिंग लाइक ऐसा. मैंने बीच में सिद्धार्थ सर ने हमने कुछ एलजेस के कैंडिडेट की हमने समर इंटर्नशिप भी की थी, मैंने खुद ने उनको ट्रेनिंग दी थी. सो आई ट्राई माई बेस्ट. हम नॉर्मली समर इंटर्न लेते नहीं है, बट इस टाइम सर ने बोला था कि कोविड की सिचुएशन से हिसाब से, सो वी ट्राई अवर बेस्ट के जो भी है. सो इट इज लाइक म्यूचुअली कि फैमिली पार्ट है एलजे. लाइक हमारा जनरली ऐसे एलजे से हम जितनी बार भी आए तो मोस्टली हमारा एलजे से सिलेक्शन बहुत ज्यादा ही होता है कंपेयर टू अदर कॉलेज. दूसरी कॉलेज में भी होते हैं, बट एलजे से हमारा कुछ ऐसा ही है कि भाई मैं पर्टिकुलर खुद एलजे से हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए सूटेबल वही कैंडिडेट ज्यादा है. सो मोस्टली ऐसा है. यस, एलजे इज लाइक गुड ऐसा. और मैं तो बोल रहा हूँ कि लाइक अच्छा फील भी होता है कि अभी भी मैं कॉलेज से कनेक्ट हो, ऐसा कि पहले नहीं था, अभी बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो लाइक कॉलेज से. तो दैट इज लाइक एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लग रहा है कि भाई चलो पहले तो मुझे कोई जानता नहीं था, बट अभी कॉलेज में अभी कोई जाऊँ तो अभी मुझे लोग जानेंगे. So that is the good thing. और बहुत thanks a lot. Yes ma'am. We really appreciate your involvement, and it has really helped. Of course, the more involved the alumni are, it gives rise to mutual growth. So institute के लिए भी अच्छा है, alumni के लिए भी अच्छा है, and the future students who are going to come out from the institute, it is good for them. So it's like a mutual relationship on the base of which both of us can thrive together. So thank you, Mukesh, for your time. I am sure your time is very important given this kind of scenario is going on in the markets. So it's really good that you came to us and spoke to us, and in detail you talked to the students. I think there is one last question somebody has put it in the chat box. So if you permit me, should I read out the question? Yes ma'am. Somebody, yes, Mirabai is asking that can you please give us few trading tips to consider when trading in calendar spreads? It requires lots of research first of all. और मैं इसलिए इतना ऐसा नहीं कि मुझे इन्फॉर्म नहीं करना, बताने नहीं, बट लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में हाफ नॉलेज इज क्राइम. क्योंकि क्या है, हाफ नॉलेज लेके जाओगे आपके पैसे चले जाएंगे. ऐसा नहीं कि भाई चलो ऐसा. यस, फॉर अ लर्निंग पर्पस कैलेंडर के लिए आप स्ट्रेटेजी के बारे में जाओ. और उसमें क्या होता है, बेसिकली कैलेंडर में हम क्या करते हैं कि नियर एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट को सेल करते हैं और फार एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं. बट इट इज नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि आप ऐसे पैसे कमाओगे. इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एफर्ट, और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इतनी ही चाहिए, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए.
बट बेसिकली कैलेंडर स्प्रेड में लोग ऐसे ही काम करते हैं कि नियर मंथ का सेल करते हैं और फार मंथ का बाय करते हैं, और हम भी वही स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, बट उसमें बहुत सारी एक्सपर्टाइज होती है और हमारा एक्सपीरियंस भी होता है। सो अभी ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई ये करके कर लो आप अर्न कर लोगे, बट जस्ट ट्राई टू फॉलो। आप क्या कर सकते हो कि पास्ट का डेटा निकाल सकते हो, उस पर रिसर्च कर सकते हो, थोड़ा एक्सेल पे वर्क कर सकते हो। फाइनेंस में, स्टॉक मार्केट में तो एक्सेल मस्ट बी। सो अगर उनको कैलेंडर में पर्टिकुलर बहुत इंटरेस्ट है तो पहले एक्सेल में पास्ट डेटा भाव कॉपी डाउनलोड करें, भाव कॉपी डाउनलोड करके उसमें रिसर्च करें, तो उनको थोड़ा आइडिया आएगा कैसे करना है, क्या करना है। फिर वही चीज वो प्रैक्टिकली थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करना चालू करे तो कर सकते हैं। बिकॉज यही है तरीका, तो यही है कि स्लो है प्रोसेस, बट स्लो सही है, रिस्क है, टाइम पास नहीं करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। Okay, I think that is all from our side. Once again, thank you, Mukesh, and everybody. Thank you, all the students, for being there for both the days. I hope you had an enriching experience as we had. If you have any more queries, any further queries, Mukesh, can I take more queries, because class में Yes. तो मुझे बहुत सारे queries आएंगे, so I will be requiring your number. So Sure, ma'am. so yes, definitely we will be contacting you. Okay, so Sure, ma'am. thank you everyone. Finex team, can we say an end to Finex 2020? Official Yes. end. Yes, Okay. thank you, Thank you. Mukesh. Thank you Thank you, everyone. thank you, Thank you, Mukesh. And bye. Thank you, Bye students. for, thanks to everyone. thank you everyone.